हम लोग ने इतना काम किया बीच में कि रिवर मार्च में लोगों को उम्मीदें बढ़ गई कि साहब आप लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर सकते हो, और आप लोग सिर्फ ग्राउंड लेवल पे काम नहीं कर सकते हो, आप लोग सरकार और पब्लिक और जो स्टेक होल्डर्स है उनके बीच में समन्वय बना के काम कर सकते हो, कोऑर्डिनेशन बना के काम कर सकते हो। ये लोगों को कॉन्फिडेंस है हम लोगों पे, एंड आज हम लोग मुंबई मार्च के नाम से फेमस है। अब मुंबई में कहाँ भी सोशल सर्कल में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मुंबई मार्च का बहुत बड़ा नाम है। गोपाल भाई जवेरी जिनका मेरे ओनर है, अपने फाउंडर है इस प्रोग्राम के, इस कैंपेन के, उनको रिवर मैन ऑफ मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत लंबा हमारा सफर रहा है। मैंने छोटे से मैं आपको बता दिया एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। विद दैट मैं चाहूंगा कि सब लोग एक एक बार अपने आप को म्यूट करें जब तक बाकी लोग आ रहे हैं, एंड अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे। आप वीडियो पे नहीं जाएंगे चलेगा, सिर्फ आप कौन है और आप क्या करते हैं। Right, so I can see Sandeep Narwani. Sandeep, if you can listen me, please unmute yourself and introduce yourself. हाय, आई एम सॉरी अगर मेरे पीछे आवाज़ आ रही है थोड़ी सी। तो That's okay. मैं बॉम्बे में ही बड़ा हुआ, बट राइट नाउ आई एम इन दिल्ली। Okay. और मैंने स्लम्स पे काफ़ी काम किया था बिफोर आई बिकेम अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द आम आदमी पार्टी ओवर हियर। इसके बाद Okay. मैं यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी सेल का काम देखता था कई साल तक, Okay. और मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के साथ मैंने यहाँ की स्लम रिहेबिलिटेशन पॉलिसी पे भी काम किया है। अब Okay. मैं एक छोटा सा सबैटिकल ले रहा हूँ। Okay. मुझे कोरोना हुआ था कुछ 2 महीने पहले, तो मेरी हेल्थ Mhm. काफ़ी वीक हो गई है, एंड जस्ट टेकिंग अ ब्रेक नाउ। सो उसके पहले आई हैव आल्सो बीन वर्किंग इन द पॉलिसी स्पेस अक्रॉस मिनिस्ट्रीज। तो लास्ट में आई वाज वर्किंग ऑन द एनवायरनमेंट पॉलिसी फॉर दिल्ली। सो आई होप टू एक्सचेंज नोट्स, और जब मैं बॉम्बे आऊँगा तो आई लव टू मीट ऑल ऑफ यू। Would love to have you in our team, Sandeep, जिन्होंने slums के लिए काम किया है ना। In fact, you can be the approval for all the other people कि जो हम लोग बात कर रहे हैं वो actually possible है, and that is to be done. Right. So with your experience, we really welcome you to Zero Slums Mumbai and would love to have you on our team. अपन एक personal one-on-one भी करेंगे after this call in a couple of days. So would love to have your experience with me. Thank you. Thanks. Thanks a lot, Sandeep. Saurabh, please quickly unmute yourself and give a small introduction. You'll have to join via audio. Saurabh, we can't hear you. Yeah. Can you hear me? Absolutely, Saurabh. Go ahead. Yeah. So this is Saurabh Advankar from Borivali. I work for Mumbai Animal Association. It's an NGO for animals, stray animals. We look after their health and treatment. I had worked, I had met up Gopal Bhai some years back when we were trying to do some cleanliness activity at the Borai area, and we could work with the cooperators out there. Okay. And after that, I had a small experience. I couldn't say it's as big as you guys, but I worked on the lake out in Charkop also for some time. Though it was not a very big success, but it's done some good out there. So I would be really interested to understand what we do for Zero Slums also. Let's see what I can contribute. Amazing, Saurabh. I promise you something. You'll enjoy the campaign. बहुत ही positive campaign हम लोग ने किया है. This is not an NGO. This is a public campaign, social movement, just like River March was, Mumbai March was. We welcome you here, right? So two great people with us. बहुत experienced लोग भी हैं. The next in my list is Harish. So मेरे पास जो actually जो पहला नाम पहले मेरे phone पे आ रहा है वो मैं उनको बुला रहा हूँ. Harish, please unmute yourself and give a small introduction. हरीश शायद सुन नहीं पा रहे हैं. अनमोल अग्रवाल. Anmol Agarwal, a call from Aditya Agarwal. Please unmute yourself and give an introduction. I think Anmol भी अपने को सुन नहीं पा रहे हैं. In the introductions now, you can tell me when everyone has joined or someone has joined. अपन part में रुकेंगे उनके लिए. And when everyone has joined, you can interrupt me. तो अपन फिर introductions end के लिए रख देंगे. ठीक. A few more are yet to join. But until then, we can just have the introduction of a few. We'll get to know each other ना थोड़ा बहुत. हाँ, इनफैक्ट एनर्जी भी आ जाते हैं. अब वो दो लोग जो मुझे मिल गए जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं,
तो उनका काम सुन के मेरे को और एनर्जी आ रहा है यहाँ पे. So really excited about this session. To the ones who have come on time, we really appreciate you coming on time. In fact, वो एक छोटा सा लिंक का प्रॉब्लम हो गया था, ज्वाइनिंग लिंक का, जो वापस बनाना पड़ा, इसलिए सबको कम्युनिकेट करना पड़ रहा है. अदरवाइज यूजुअली वी आर ऑन टाइम, हम लोग टाइम टू टाइम ही काम करते हैं. प्लीज टेक दिस दैट वे. निरंजन, आई कैन सी योर वीडियो बट आई कांट hear you, so if you can quickly unmute yourself and give a short introduction. Hi, I'm. Can you hear me? Yeah, absolutely, Niranjan. Go ahead. I'm ex-marine engineer. I'm now into investment advising and all that. I have not done anything like this before. Okay. So let's see. I love my city because I'm born and brought up here. Let's see what I can do. Okay, brilliant, Niranjan. Pleasure to have you with us. Marine engineer, कहीं ना कहीं आप काम आ ही जाओगे हमारे पूरे प्लान में. Yes. In fact, apart from being a regular volunteer, just like me, आपके expertise भी हम लोग कहीं ना कहीं use कर ही लेंगे. Always welcome. Right. So Harish probably cannot hear. Anmol, if you can unmute yourself and give me an introduction. Okay, Anmol is here. Go ahead, Anmol. Yeah, I'm Anmol. I'm from Jaipur. I'm into green building and sustainable design. Superb. So we do greenhouses, sustainable buildings. Amazing. Currently, we are planning a zero energy building. Okay. So that much only. Thanks. Superb, Anmol. We really need people like you, because जब आप मेरा plan सुनोगे और हम लोग क्या करने वाले वो सुनोगे, so you would actually agree with us that Zero Slums Mumbai is possible, and we require experts like you to really work on that. Next would be Yash Agrawal. Hello. Yeah, hi Yash. Hi. I'm Yash Agrawal, and Right. I am a postgraduate in philosophy. Oh, And मैं आमची मुंबई आमची बेस्ट और फ्राइडेज फॉर फ्यूचर से जुड़ा हुआ हूँ. okay. Brilliant, brilliant. Postgraduate in philosophy. अपनी शायद लंबी बात होगी जिस दिन होगी यश, अपन मिलेंगे. And अच्छा, one more thing कि हम लोग अभी जितना भी कर रहे हैं, ये पूरा conceptualization 2 साल पहले चालू हुआ था. अभी कोरोना टाइम में जब मेरे को टाइम मिला तो अब हम लोग को लगा यार इसको लॉन्च कर देना चाहिए, बिकॉज कोरोना में बहुत प्रॉब्लम्स हुई है. वी डोंट वांट दैट टू रिपीट. तो अभी जितना भी हो रहा है ये ऑनलाइन हो रहा है. कुछ हमारे ऑनलाइन सेशंस भी हुए हैं, कुछ हमारी ऐसी मीटिंगें भी होंगी. एक थोड़ा आइस रहेगा अपने बीच में, बिकॉज अपन कभी मिले नहीं है. आई प्रॉमिस यू, मुंबई मार्च, रिवर मार्च का नाम ग्राउंड लेवल कैंपेन्स के लिए है. अपना ग्राउंड लेवल पे भी बहुत बड़ा कैंपेन होगा. टिल देन वी विल हैव टू अज्यूम कि अपन एक दूसरे को जानते हैं. ठीक है, बस अज्यूम कर लो एकदम. मेरे को बेस्ट फ्रेंड समझ के हुए गाली वाली भी देना है ना, आप बिंदास दे सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है. बट बी लाइक दैट कि हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, so that you don't feel awkward when you are around or when you talk about Zero Slums Mumbai. Own this campaign, be the campaign, and with that I would like to call Alpana. Alpana, you're next. If you can unmute yourself, give a short introduction. I had introduced myself last meeting. A lot of new people are over here, actually 30, Yeah, 40 yeah. new people over here. Please go Yeah, ahead. yeah. I am a CA by profession, but I got involved in that Save RA campaign, and Okay. I continued with that. And because of this, I started loving our Mumbai more once I visited RA so many times. Okay. So like, yeah, Zero Slum was a concept which I really liked. I said, let me try to be part of it. Superb, Alpana. Yeah. Thanks a lot for the introduction. Yeah. मैं यहाँ से ना Yeah. सिर्फ Hmm. अपना सेशन होने के बाद अपने ग्रुप पे 2-4 पिक्चर्स सेंड करूंगा. ये अपने नेशनल पार्क की हाँ. फोटोज है. एंड आई प्रॉमिस यू गाइस, Okay. यू वुड हैव नेवर थॉट कि अपने बॉम्बे में ऐसी जगह भी हो सकती है. सो विल Yeah. डू अ लॉट ऑफ दोस But- एक्टिविटीज, रीडिस्कवरिंग बॉम्बे एंड ऑल. क्या गो अहेड अल्पना. Yeah, yeah. One sec. I just wanted to know that someone was from Jaipur. Who is that person? From Jaipur, someone? जयपुर I से had थे. recently heard about the floods in Jaipur. Is it the truth thing? No, it's not true. Are there That any was only floods? waterlogging. Are there any floods in Jaipur, or there are No, not not floods? at all. That was only waterlogging. Okay, okay.
but river was up, like there was a problem, like lot of water and so many houses got disturbed or something. Yeah, Is it it was there, but it's due to drainage system, not like it was nothing like floods. okay? But there was a huge loss and everything. Is that true? Because nowhere in the Yeah, media it has come in much, Allah. So yeah, just that was there. WhatsApp photo. It was due to drainage problem. Okay, okay. Yeah. Brilliant. So see, we already started, अपना वो networking चालू हो गया यहाँ पे. ठीक है, 5 minutes more, just 4 minutes more. 6:16 हुआ है. 6:20 we can begin. 22 people have joined. 27 were supposed to join. थोड़े लोग आगे पीछे हो रहे. A few I'll contact. 6:20 we can start. कोई नहीं. In fact, Gautam, we have already started. We are not wasting anyone's time here. हमने मुंबई मार्च का introduction दे भी दिया. And then we already started networking. तो जो बाद में होने वाला तो we already started that way, right? So Alpana, yes, I remember you from the last time. हमारा एक Tuesday Correct session हुआ था जिसमें बहुत लोगों को introduction दिया था. This one would be a large formal session जिसमें अभी screen sharing भी करूँगा मैं. I see Deepali Joshi, you were there last time, but please go ahead again since there are new people around. Yeah. Hi everybody. My name is Deepali Joshi. I am 19. I am studying law currently, and I have been in touch with Gautam since a very long time, and he used to post a lot of stuff on his WhatsApp, on his Instagram. I used to read a lot of books, but इस बार ये जो slum rehabilitation के बारे में उसने डाला, I got really interested in it. It was the first time that it actually clicked with me, and so I am sincerely looking forward to contribute to the campaign. Superb, Deepali. Thanks for actually, even considering it, because at 8-19, I don't remember मैं क्या कर रहा था. So अभी public forum पे नहीं बोल सकते कि हम लोग 19 years में क्या कर रहे थे. You are here. Gautam is here. Gautam is already, leading a lot of, our activities. Really amazing to have youngsters with us, and you are our power, seriously. And with that, thanks a lot, Deepali. So with that, Priya Kumari, please introduce yourself. Yeah, you can unmute yourself and introduce if possible. कोई बात नहीं. We'll wait for that. So Nikhil. Yeah, I'm here. Sorry. Yeah, go ahead. Yeah. Hi everybody, Priya here. I'm working as a financial analyst at DB, Deutsche Bank, and I came to know about this through WhatsApp. I think my friend Karishma had shared. And then I got the Zoom link and then I joined. So it was quite an interesting idea and looking forward to it. Brilliant. Thanks a lot, Priya, for the introduction. Short and sweet. यहाँ पे who's next after Priya? I can see Arbaz Aga. Arbaz, go ahead. Hello, I'm Arbaz Aga. I'm a final year student, management student. Actually, I'm associated with Fridays for Future, and I've also been volunteering for beach cleanups at Sanjay Gandhi National Park and Danapani Beach. And I think I would like to explore more about Zero Slums Mumbai, which is I'm attending this Zoom session. Super. Thanks a lot, Arbaz, for being with us. Nikhil Pandya, quickly. Hello everyone. I'm Nikhil Pandya from Palghar. I'm second year's back student. सर मुझे पता नहीं क्या ये सब कैसे होता है क्या होता है बट इतना पता ये जरूरी है अभी जरूरी है ये अभी एनवायरनमेंट साफ सफाई को अवेयर करना ग्राउंड पे अवेयर करना ये जरूरी है मैं पहली बार ये अभी ज्वाइन किया हूँ मुझे कुछ पता नहीं है क्या होता है मैंने बस मिस्टर गौतम को मैंने कांटेक्ट किया था इंस्टाग्राम से देन उन्होंने मुझे इनवाइट किया है और थैंक्स आई एम ग्लैड मुझे पता नहीं मेरा कोई फ्रेंड नहीं है सर मुंबई में तो मुझे पता नहीं कैसे ज्वाइन किया जाता है यहाँ पे कुछ है नहीं हमारे यहाँ तो मैंने बहुत सर्च किया हैशटैग वगैरह तो देन मुझे कांटेक्ट किया उनको तो उन्होंने मुझे लिंक दिया और थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर सुपर थैंक्स अ लॉट फॉर दैट निखिल आई रियली अप्रिशिएट देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ जब हमें समझ आता है ना हेल्थ जरूरी है तभी आदमी सुबह जाके ना मॉर्निंग वॉक करता है ना वर्कआउट करता है ये करता है तो सबसे पहले अपना स्टेज वही है कि आइडेंटिफाइंग दैट जीरो स्लम्स मुंबई इज अ नीड राइट अगर उसके वो नहीं होगा तो 10 years डाउन द लाइन मुंबई की क्या हालत होगी
दैट इज द फर्स्ट थिंग टू आइडेंटिफाई द नीड. आपने ऑलरेडी वो कर ली है, मेरे लिए पहला स्टेप ऑलरेडी हो चुका है. थैंक्स लॉट फॉर दैट. एंड अच्छा, so let's start now. Start करते हैं. तो बाकी लोग प्लीज सेशन के बाद आपका इंट्रोडक्शन लूंगा मैं. आई विल क्विकली स्टार्ट द प्रेजेंटेशन में शेयर कर लेता हूँ. ये प्रेजेंटेशन सेम है जो वेबसाइट पे है. वेबसाइट को बनाए इस तरीके से कि अपन कोई भी प्रेजेंटेशन दे सकता है. और जस्ट गिव मी अ मोमेंट. या सो वेबसाइट को बनाए इस तरीके से कि कोई भी प्रेजेंटेशन दे सकता है. इतना एक सरल है, समझने में बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है. ज्यादा नंबर्स में हम लोग को जाना नहीं है. नंबर्स में हम लोग धीरे धीरे ऑटोमेटिकली चले जाएंगे. मैं आपको ये जब तक प्रेजेंटेशन रेडी होता है मैं आपको ये बताता हूँ कि ये बात कहाँ से चालू हुई. आज से 2-2.5 साल पहले मैं और गोपाल भाई हम लोग आसपास में रहते, जो फाउंडर है मुंबई मार्च के. तो हम लोग रात को मिले डिनर के बाद टहलने के लिए. मिलते मिलते गोपाल भाई ने बोला, आदित्य यार अपने रिवर्स में इतना काम किया, 8 साल काम किया, लेकिन जब ग्राउंड लेवल पे काम किया तो हमको समझ में आया कि यार सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स अपनी ग्राउंड लेवल से जुड़ी हुई है. मतलब तो मैं बोला कि ग्राउंड लेवल बोले तो बोले स्लम्स से. बोला कैसे? बोला स्लम्स में इलीगल फैक्ट्रीज चलती है. स्लम्स की जो लाइफस्टाइल है उस हिसाब से जितना भी जो उनका जो लाइफस्टाइल रहता है सब रहता है, जो वेस्ट होता है वो सारा का सारा रिवर में जाता है. यानी हम जितना भी क्लीनिंग करवा ले, सरकार को कितनी भी गाली दे ले, जब तक हम लोग सोर्स तक नहीं पहुंचते, जब तक हम लोग सोर्स का निवारण नहीं करते, तब तक बॉम्बे की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है. अब यार ये बड़ा मेरे लिए वो था कि भाई साहब अगर इतना मेहनत किया अपन ने और अगर स्लम्स के हटाए बिना नहीं होगा तो यार बॉम्बे में 1 करोड़ के नीचे घर नहीं मिलता है. अब बॉम्बे में 1 करोड़ के नीचे घर नहीं मिलता तो इतने लोगों को थोड़ी ना अपन 1-1 करोड़ का घर फ्री में दे सकते, एंड दे कैन नॉट अफोर्ड. तो मैं चला मैं रिसर्च कंसल्टेंट तो थोड़ा इस पे रिसर्च करते हैं. मैंने उसमें रिसर्च आगे बढ़ाई. मैं 1-2 साल तक रिसर्च की. मैं, आप मानोगे नहीं, मैं बिल्डर्स से लेके बीएमसी वर्कर्स से लेके ऑपरेटर्स से लेके अपने जो कंसल्टेंट्स होते हैं ग्रीन हाउस के जैसा अनमोल है, उन लोगों से सबसे मिला. मैंने 1 साल में बहुत इसके पीछे रिसर्च की. पता चला कि साहब जीरो स्लम मुंबई पॉसिबल है. एंड कैसे पॉसिबल है वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ. बट द बिगेस्ट थिंग वाज इट इज पॉसिबल. तो आप आज जब आप सोच रहे होंगे, आए होंगे, तब क्या कुछ भी होगा शायद यार चलो अच्छी बात, अच्छा है, लेकिन क्या ये फिजिकली पॉसिबल है? कोई भी चीज जो अपन प्लानिंग करते हैं सरकारी तौर पे या सोशल कैंपेन पे, सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ता है कि क्या ये फिजिकली पॉसिबल है. समाधान हर चीज का है, लेकिन अब उसको 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ 40,000 करोड़ मिलेंगे छोटे से समाधान को, तो वो नहीं होने वाला है. इट्स नॉट फिजिकली फीजिबल. तो क्या ये फिजिकली फीजिबल है? और दूसरा, क्या इसमें लीगली भी पॉसिबल है? जब अगर ये 2 वैलिडिटी आ जाती है, यानी कोई भी कैंपेन करने का मतलब होता है. सर्वेश इज हियर एंड जो बाकी एक्सपीरियंस लोग हैं, ये लोग भी ये बात को समझते होंगे जिन्होंने पब्लिक लाइफ में काम किया है, कि हर जो कैंपेन होता है उसका एक लीगल पॉसिबिलिटी होता है, एक फिजिकल पॉसिबिलिटी होता है. हमने उस पर रिसर्च किया और ये एक्चुअली पॉसिबल था. अब बस 2 मिनट में जल्दी से मैं स्क्रीन शेयरिंग चालू कर देता हूँ. राइट. सो सबको दिखाई दे रहा है कि जीरो स्लम मुंबई की वेबसाइट पे हम लोग. कैन एवरीबॉडी सी दैट? 1-2 जन अनम्यूट करके बोल दीजिए यस. Yes. Brilliant. Thanks a lot, Gautam, for that. So this is the Zero Slum Mumbai website. Mumbai is the city of our dreams, and Zero Slum Mumbai is our dream for the city. हमारे सपनों का शहर तो है, लेकिन सपनों के लिए भी शहर के लिए भी हमारा एक सपना होना चाहिए. So मुंबई सिटी ऑफ ड्रीम्स क्यों है, पहले इस पे आते हैं. हर चीज करने के पीछे हमारा एक रीजन होता है. मैं क्यों कर रहा हूँ, आप क्यों कर रहे हो, कोई क्यों कर रहा है, उसका एक रीजन होगा. तो ये है द मुंबई स्टोरी. ठीक है. मुंबई पूरे दुनिया का मेरे ख्याल से इकलौता शहर है जिसके बीचों बीच एक रिकॉग्नाइज्ड स्लम है, एक रिकॉग्नाइज्ड फॉरेस्ट है.
ठीक है, कहीं भी दुनिया में रिकॉग्नाइज्ड फॉरेस्ट नहीं है। इवन जो सेंट्रल पार्क इन न्यूयॉर्क में, राइट गौतम, सो जो सेंट्रल पार्क है दुनिया में वो भी एक पार्क ही है, जैसे अपना नाना नानी पार्क होता है, कोई दूसरा पार्क होता है। एक रिकॉग्नाइज्ड फॉरेस्ट मुंबई में सेंटर पे है, ये और कहीं नहीं है दुनिया में। सो मुंबई इज अ सिटी विद द फॉरेस्ट, ये लंग्स है मुंबई के, राइट। वी आर अ सिटी ऑफ केव्स। आप देखोगे मुंबई के चारों दिशा में केव्स है, एलिफेंटा और जो अपने अपने कानेरी केव्स है। ये केव्स पहले के जमाने में बनते थे, अब तो बनते भी नहीं है, अभी तो मूर्तियां बनाते हैं, राइट। तो पहले के जमाने जब केव्स बनते थे, ये इतने हजारों साल पुराने केव्स है। मैं आपको बता दूं कि मुंबई में गिलबर्ट हिल नाम का अंधेरी वेस्ट में एक पत्थर है। पत्थर एक्चुअली छोटा सा हिल है, वो 65 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, इवन ओल्डर देन डायनासोर्स। आप सोच रहे हो सारी दुनिया में सिर्फ 2 पत्थर है, अपने को ये पता भी नहीं था। मुंबई वेस्ट में एक पत्थर है जो 65 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। इतना पुराना है बॉम्बे, और इतना पुराना हमारा ये शहर। मुंबई में आप देखोगे तो दुनिया के हर रिलीजन का टेम्पल है, राइट। आपको जैन देरासर भी मिलेगा, आपको मंदिर भी मिलेगा, आपको मस्जिद भी मिलेगा, आपको अपना चर्च भी मिलेगा, और जूइश टेम्पल्स भी है अपने पास, एंड पारसी अग्यारी भी है। सो आप देखोगे हर रिलीजन का ऑलमोस्ट एक मंदिर मुंबई में है। इतना ये कहाँ मिलता है आपको। मुंबई में रिवर है, बीच भी है, अरे वहाँ नदी भी बहती है और बीच भी लग के है। सिटी ऑफ हार्ड वर्क। देखो ये तो रही जो हम लोग को नेचुरल धरोहर मिली, बट व्हाट इज मुंबई? मुंबई इज अ सिटी ऑफ हार्ड वर्क। हमको ठूस ठूस के ट्रेनों में जाना पड़ता है, रोज सुबह हम चले जाते हैं, ठीक है। एंड जहां देखो मुंबई, आप कहीं भी देखो, अभी बाढ़ भी आ जाएगी तो 100 लोग उतर आएंगे दूसरों की हेल्प करने के लिए। सो हार्डवर्क से मुंबई ने कभी डर नहीं रखा, इसके लिए आज मुंबई जो है वो है। मुंबई इज अ सिटी ऑफ सेलिब्रेशन। अपन बाकी पॉलिटिक्स को अगर बाजू में रख दे तो ईद भी उतने ही खुशी से आप जाके देखना मोहम्मद अली रोड पे। कभी मैं गया हूँ और मैं हर साल जाता हूँ। वैसे ही गणपति भी हम वैसे ही मनाते हैं, दिवाली भी ऐसे मनाते हैं, क्रिसमस में कभी बैंड्रा चर्च जाके देखना, आपको पता चलेगा सेलिब्रेशन कैसे होता है। सो मुंबई इज अ सिटी ऑफ सेलिब्रेशंस। मुंबई इज अ सिटी दैट नेवर स्लीप्स, राइट। आई बीन इन डिफरेंट सिटीज। मैं पुणे में रहा हूँ, मैं दिल्ली में रहा हूँ, मैं सूरत में रहा हूँ, मैं जयपुर में रहा हूँ, मैं हर जगह गया हूँ। मुंबई में आपको रात को 3 बजे भी लोग घूमते हुए दिखाई देंगे सड़कों पे, बिना किसी टेंशन के कि कोई मुझे तकलीफ पहुंचाएगा, ठीक है। इट्स अ सिटी दैट नेवर स्लीप्स। रात को 4 बजे भी मेरे पास जॉइंट्स है कि भाई जहाँ जाके आपको कम से कम इडली विडली मिल ही जाएगा खाने को, और फिर 5 बजे तो बाकी सारी दुकानें खुलना चालू हो ही जाती है, ठीक है। मुंबई इज अ सिटी ऑफ ड्रीम्स। मुंबई सपनों का शहर है। हर कोई आता है, वो जो भी चाहता है उसको मुंबई से मिल जाता है, थोड़ा बहुत हार्डवर्क करे तो, ठीक है। यस, मुंबई इज द सिटी ऑफ आवर ड्रीम्स। अब हमने क्या क्या झेला है पहले उसकी बात कर लेते हैं साहब। हमने, बाढ़ तो हमारी आदत बन चुकी है, ठीक है। 1990 के बाद, 90s के दशक के बाद टेररिस्ट अटैक भी हमारी आदत बन चुकी है। आप मानोगे नहीं, 7/11 जो अपना ट्रेन के बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे उसमें मेरा भी पर्सनल कोई इंजर्ड हुआ था बहुत बुरी तरह से। तो अब वो टेररिस्ट अटैक भी उसके बाद लगातार हुए, फिर कसाब आया, ये वो। मुंबई तीसरे दिन हमेशा काम पे लौट जाती है। देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप मुंबई, राइट। अपन देखना, मैं जब वो ट्रेन वाला धमाका हुआ था, बिकॉज जो इंजर्ड हुए थे उनके लिए मेरे को ट्रेन से ट्रैवल करना पड़ता था। आप मानोगे नहीं, तीसरे दिन तक सारी ट्रेनें वापस फुल होने लग गई थी। सो सब हुआ है अपने साथ, बट अपन वी केम बैक स्ट्रॉन्गर, ठीक है। अपन ने कैंडल मार्च भी की है निर्भया के लिए। अपन ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन में भी पूरा साथ दिया था अन्ना साहब का। एंड गणपति भी आज भी वैसे ही मनाया जाता है, ईद भी ऐसे मनाई जाती है। सो वी हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट एवरी टाइम वी केम बैक स्ट्रॉन्गर। एंड यस, फॉर मी दिस इज अमेजिंग। आप बाकी शहरों में देखते हो, जब वर्ल्ड न्यूज बनती है बाकी शहरों में टेररिस्ट अटैक हुआ, ये हुआ, तो 4 दिन 5 दिन एकदम सन्नाटा हो जाता है। नहीं साहब, बॉम्बे में दूसरे दिन सब चालू, ठीक है। ये सब हमारी इनर स्ट्रेंथ की वजह से हुआ, बट देयर इज वन थिंग दैट इज मेकिंग अस वीक, ठीक है। अंदर से हम लोग कमजोर हो रहे हैं। क्या है ये? क्या है जो टर्माइट की तरह मुंबई को खा रहा है? अब तक हम लोग ने सर्वाइव किया, आगे करेंगे नहीं करेंगे ये इस पे डिपेंड करेगा। द स्लम्स,
यही है जो हमें धीरे धीरे टर्माइट की तरह खा रहा है। ये जो पिक्चर्स है ये एक्चुअल पिक्चर्स है, ये सारे इंटरनेशनल न्यूज मीडिया में आई हुई पिक्चर्स है, मैंने जाके नहीं है, ये इंटरनेशनल न्यूज मीडिया की पिक्चर्स है। दिस इज एक्चुअल कंडीशंस जो आप देख रहे हो, ये मुंबई की एक्चुअल कंडीशंस है, राइट? डू यू सी हाउ दे आर लिविंग? और बगल में आप देख रहे हो खिड़कियां हैं एक दो फोटोज में, तो ये मुंबई की एक्चुअल कंडीशन है। मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा बता दूं, शायद सुन के आपको बुरा लगे, लेकिन हमको जब एक घरों में रहते हैं, हमारे मैक्सिमम 2 आदमी एक टॉयलेट शेयर करता है। मुंबई में आज भी ऐसे स्लम्स है जहां एक टॉयलेट इज शेयर्ड बाय 2000 पीपल। सुबह 4 बजे लाइन लगती है, 2 से 3 घंटे लाइन में लगने के बाद आपको पॉटी जाने का मौका मिलता है। दिस इज द एक्चुअल कंडीशन ऑफ मुंबई, राइट? बहुत डिजास्टर्स है, अपन सोच भी नहीं सकते 2 घंटे तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। आप प्रेग्नेंट वुमेन का सोचिए जिनको तुरंत वॉशरूम की जरूरत पड़ती है, किसी को पेट खराब हो जाए उसकी क्या हालत होगी, उसी इतने ड्रेडफुल तरीके से वो लोग रहते हैं एंड रहना पड़ता है क्योंकि वो मजबूरी है। ठीक है, waking up at 4 p.m. to fetch 2 buckets of water or standing in 2 hours in queues to take a dump is actually a reality of Mumbai. Nobody can deny that. आपको चाहिए तो मेरे से पर्सनल में व्हाट्सएप करना, मैं आपको जगह बता दूंगा, सुबह जाके देखना, आपको पता चल जाएगा क्या असलियत है, राइट? चलो उसमें नहीं जाते, अब ये प्रॉब्लम्स की बात बहुत हो गई सब, सबको पता है सब प्रॉब्लम्स, वी नो दैट इंटरनली दिस इज एक्चुअली द प्रॉब्लम। सो we'll not talk about the problems, now we'll talk about the solution. तो साहब मैं बहुत तर्क वाला आदमी, मेरे को पता है जो चीज का सोल्यूशन क्या है, मतलब घर का तो सोल्यूशन घर ही है। अब मैं ऐसा थोड़ी ना बोल सकता कि भाई ये जितने भी स्लम्स में रहते हैं आप प्लीज छोड़ के चले जाइए, रियली कैन नॉट डू दैट, राइट? वो लोग भी मुंबई को उतना ही कंट्रीब्यूट करते हैं। आज अगर वो डब्बा वाला अपने चर्चगेट साइड पे घर में डब्बा नहीं पहुंचाएगा ऑफिस में, then people would be forced to eat outside food, बीमार पड़ेंगे, मुंबई चलने वाला नहीं है। वो जो डब्बा वाला गरम गरम खाना घर से वहां तक पहुंचाता है उसके वजह से बॉम्बे चल रहा है। वो जो काम वाली बाई अपने आती है, जो अपने वर्कर्स फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, ये सब लोगों की वजह से अपना मुंबई चल रहा है। ऑटो वाले के बिना बॉम्बे नहीं चलने वाला है, वी ऑल नो दैट। आप ओला ले आओ, उबर ले आओ, बहुत अच्छी बात है, आधा घंटा लग जाता है, पौना घंटा लग जाता है, वो 5-5 किलोमीटर दूर से आता है। घर के नीचे आपको कोई भी तकलीफ हो तो ऑटो वाला ही खड़ा मिलता है। So these are a part of our ecosystem. We contribute 32% of income tax from all over India. आप समझ रहे हो, एक स्टेट भी नहीं, एक सिटी is contributing 32% of income tax all over India. और ये सब आप मानोगे कि ये सब लोगों के बिना पॉसिबल नहीं है। So let's not get into the argument कि slums में कौन रह रहा है, क्या रह रहा है। Everyone is here and everyone is contributing to India. ठीक है? And planned towns replace the slums. So घर के बदले घर ही मिलेगा, सब घर के बदले आप झाड़ के नीचे नहीं रह सकते, घर की जरूरत तो घर ही लगेगा। स्लम्स को कैसे रिप्लेस करें, उसको एक एक को घर थोड़े दे सकते। तो स्लम्स को जो हम लोग रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो प्लान टाउन्स बनाने पड़ते हैं, टाउनशिप नहीं, टाउनशिप एक छोटी चीज हो जाती है, टाउन प्लानिंग होती है पूरी कि साहब स्लम्स के बदले हम लोग क्या क्या बनाएंगे, क्योंकि एक आदमी की जरूरत सिर्फ घर नहीं होता है, घर के आसपास और भी जरूरतें होती है, आपको किराना चाहिए, आपको ये चाहिए वो चाहिए। सो वी हैव टू रियली डू दैट टाउन प्लानिंग। बोलने में इजी लगता है साहब, है ना, क्या इतना ऐसा थोड़ी ना कि सबको घर के बदले घर दे दो ये वो। तो अब ये जो इजी लग रहा था ना, इस पे मैंने रिसर्च किया, मैं आपको सिर्फ थोड़े नंबर्स बता देता हूँ। ऑफिशियली 50% ऑफ पीपल इन मुंबई, ठीक है, लिव इन रिकॉग्नाइज्ड स्लम्स। में बॉम्बे की आधी जनता रिकॉग्नाइज्ड स्लम्स में रह रही है। ये रिकॉग्नाइज्ड स्लम्स क्या है, जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर चुकी है, अभी तो अनरिकॉग्नाइज्ड और भी है, यानी 60 से 65 लाख लोग ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड स्लम्स में रह रहे हैं। एक आदमी 4 की फैमिली अगर अपन माने तो 15 लाख घरों की रिक्वायरमेंट है अगर मेरे को मुंबई को स्लम फ्री करना है। We'll all agree to it अपने अपने अंदर वहीं पे कि yes we need 15 लाख हाउस होल्ड जिसमें अपना मुंबई स्लम फ्री हो जाएगा। अब 15 लाख फ्लैट्स, वो भी 1 BHK 2 BHK अपन मानेंगे तो 15 लाख फ्लैट। आप सब सोच रहे होंगे क्या मजाक चालू है, 15 लाख फ्लैट्स रियली पॉसिबल है क्या? हेलो, yeah, so we need 15 lakh households,
to fix the issue of slums. ये तो और भी बढ़ेंगे, but let's say 15 lakhs to fix the issue of slums, home for 60 lakh people. Is it really? Let's explore. मैं आपको सिर्फ कुछ numbers देता हूँ कि क्या ये on paper possible है क्या. अपन reality में बाद में आएंगे. On paper possible है क्या. ये जो नंबर है आपको दिख रहा है, ये मैंने SRA की वेबसाइट से निकाला है. SRA में जितने भी रिकॉग्नाइज्ड स्लम्स हैं बॉम्बे में, उनका अगर आप एरिया ऐड कर दो तो इतना स्क्वायर फीट एरिया बनता है 2015 में. 2015 में 2500 रिकॉग्नाइज्ड क्लस्टर्स थे. अभी 2020 में 3200 है. सो दिस एरिया विल बी मच मोर देन at least 25% more than what it is showing over here. FSI आप सब टेक्निकली समझते होंगे. ये जितना एरिया होता है, जैसे अपना लैंड मेरा होगा स्क्वायर 1000 स्क्वायर फीट का, तो मैं 4000 स्क्वायर फीट का इनर कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ अगर FSI 4 है तो, यानी 1000 मल्टीप्लाई बाय 4. यानी कि अगर ये पूरी जितना स्लम का एरिया है उसको मैं कंस्ट्रक्ट करने जाऊंगा तो इतना एरिया मेरे पास कंस्ट्रक्टेबल बनता है. ठीक है, अगर मैं इसको नंबर्स में बताऊं आपको तो करीब 142 करोड़ स्क्वायर फीट एरिया मेरे पास कंस्ट्रक्टेबल है. आई एम जस्ट थ्रोइंग अ नंबर. 142 करोड़ स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्टेबल एरिया मेरे पास नंबर्स है. अगर आप 15 लाख हाउसेस की बात करोगे जिसमें हम 400 स्क्वायर फीट का, आजकल 300 दे रहे हैं, गवर्नमेंट बाय SRA इज गिविंग 300 स्क्वायर फीट. वी वांट अ बेटर लाइफस्टाइल, एटलीस्ट 400 देना चाहिए. 400 स्क्वायर फीट का घर भी अपन कंसिडर करें तो 33% ऑफ दिस लैंड में सारा घर बन जाएगा. यस, वी कैन डू द मैथ अपन उसका सेशन रखेंगे, बट 33% ऑफ लैंड में इन सब का घर बन जाएगा. Yes, and that's a fact, that's a reality. मैंने लोगों के साथ कंफर्म भी किया है, with architects, town planners, सबके साथ. Rest 67% of the area of the slums, 33% में सबका घर बनाने के बाद rest 67 मेरे पास, मैं माने स्टेट, me as a महाराष्ट्र स्टेट और मुंबई का BMC मेरे पास रह जाता है for rest of the town planning, future plans and for sale, कि मैं लोगों को उसको बेच सकूं. अब मैं ये सेल करके फायदा क्या होगा, ये सेल करके फायदा क्या होगा, अपना कितना इंटरेस्ट जाता है वर्ल्ड बैंक को एवरी ईयर. दिस इज द एक्चुअल अपॉर्चुनिटी फॉर मुंबई टू रियली डेवलप इन अ होलिस्टिक मैनर, सेल दिस फ्लैट एंड प्रोबेबली अपन सेल करके अपना इंटरेस्ट खत्म कर सकते हैं, लोन खत्म कर सकते हैं. अपन मराठवाड़ा में पैसा दे सकते हैं जहाँ पे हम लोग को सबसे ज्यादा जरूरत है, जहाँ फार्मर्स सुसाइड सबसे ज्यादा होता है. Right, we can look at other aspects of Maharashtra and India per se. 100% of slum redevelopment is fiscally possible, right? And उसके बाद ample surplus money बच जाएगा for our future needs. यानी population और भी बढ़ेगी, लोग और भी आएंगे, तो future needs के लिए अपने पास ample money बन जाएगा. मेरा जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से 6 से 7 लाख करोड़ रुपया सब बेचने के बाद मुंबई की किटी में एक्स्ट्रा मनी बनता है. राइट, 6 से 7 लाख करोड़ रुपया, 2,76,000 रुपए का, 1,76,000, 1,76,000 रुपए का 2G स्कैम था. मैं आपको सिर्फ उसका स्केल बता रहा हूँ. 2G स्कैम पूरे इंडिया का वो स्कैम था जो 1,76,000 करोड़ का एस्टिमेटेड था. सिर्फ मुंबई का अपन एरिया सही से डेवलप करके बेचे तो 6 लाख करोड़ का एक्सेस इनकम सरकार के पास बचता है. दैट इज अ फैक्ट, राइट? फैक्ट ऑन पेपर, डेफिनेटली. So if planned in the right way, Mumbai could use SRA as an opportunity. अब तक का मैं आपको एक डीप ब्रेथ लीजिए, लाइक जितना भी मैंने आपको बताया इसको कंज्यूम कर लीजिए कि भाई ये मान लो कि सच है, ठीक है, ये सारा डॉक्यूमेंट्री है और लॉजिक पे बेस्ड है. अगर ये सच है, राइट, तो आज जब तक अपन सोच रहे थे स्लम्स में किसी को घर देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो ये लाइबिलिटी नहीं है. अगर आप सही तरीके से देखोगे, टुडे 20% of Mumbai area is under slums. Slum rehabilitation is an opportunity. It's not a liability anymore. It's an opportunity to plan smarter, healthier, happier city. Right? मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, जो भी यहाँ पे सुन रहे हैं, स्लम्स को तो मैं एक बार बोल सकता हूँ, साहब आप इलीगल हो, आपको मैं सही जगह पे घर दे रहा हूँ, आप प्लीज वहां जाइए. बाकी जितनी सोसाइटीज है मैं उनको कभी रीडेवलप करा ही नहीं पाऊंगा. वो लोग अपने ही पेस पे जाने वाले हैं. Which means that मुंबई को ये 20% लैंड कभी जिंदगी में वापस नहीं मिलने वाला है to become a smart city. Right? इन पे तो मेरा हक है. तो 20% लैंड के साथ मैं मुंबई को एक स्मार्ट सिटी बना सकता हूँ
slum rehabilitation is an opportunity today. It's not a liability. With right planning, we could be having solar powered houses. अनमोल, आप मेरी बात बहुत गौर से सुनेंगे यहाँ पे. इनफैक्ट जो बाकी लोग भी है कंसल्टेंट से, वुड अंडरस्टैंड दिस कि एक मेजर प्रॉब्लम जो आएगी अगर मैं स्लम्स को देता हूँ, पूरे घर देता हूँ, उनकी लाइफस्टाइल बेटर हो जाएगी. ठीक है, जब लाइफस्टाइल बेटर होगी उनकी, तो उनको ज्यादा बिजली लगेगी, ज्यादा पानी लगेगा. ये कहाँ से आएगा? ठीक है, जब अपन होलिस्टिक प्लानिंग करते हैं तो ये सब चीज का भी उसमें ध्यान रखा जाएगा, जिसमें जो नए हाउसेस रहेंगे वो सोलर पावर्ड रहेंगे. अनमोल ने अभी कहा था वी आर वर्किंग ऑन जीरो हाउसेस, वो जो जीरो कंजम्पशन बाहर से ले, तो दे आर वर्किंग ऑलरेडी ऑन दोज बिल्डिंग्स. अगर अपन सही तरीके से इसको प्लानिंग करें तो फ्यूचर का जितना भी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट आने वाला था, मेरी जो सोसाइटीज होगी वो आत्मनिर्भर होगी इन ट्रू सेंस. मैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग करूंगा तो मेरे पास साल भर पानी रहेगा. मैं सोलर पावर से सोलर सेल्स लगाऊंगा, सोलर पावर्ड हाउसेस बनाऊंगा, तो मेरे पास बिजली भी रहेगी. गवर्नमेंट पे या रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र पे, रेस्ट ऑफ इंडिया पे बिल्कुल लोड नहीं आएगा if we plan it in the right way. ठीक है, सस्टेनेबल लिविंग कैन बी आइडियलाइज्ड फ्रॉम मुंबई. अब तक बाकी सिटीज कर नहीं पाई है. जो स्मार्ट सिटीज है, इट इज ओनली ऑन पेपर. वी कैन एक्चुअली, मुंबई के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट वी कैन एक्चुअली क्रिएट सस्टेनेबल लिविंग. राइट, सो ये हो गई आइडियल बातें, ऑन पेपर बातें कि साहब ये सब पॉसिबल है नहीं है. गवर्नमेंट क्या करी अभी? सो गवर्नमेंट की तरफ से एक एक्ट आया था 1995 में, स्लम रिहेबिलिटेशन एक्ट. राइट, वो एक्ट के अंडर हम लोग ने स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी बनाई. तो दिस इज व्हाट इज बीइंग डन राइट नाउ. तो अब तक जो बात थी अपनी कि साहब क्या क्या हो सकता है, ये मेरी रिसर्च पे, कॉमन मैन की रिसर्च पे है, जिसमें मैंने बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को बीच में इकट्ठा किया. अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, उन्होंने स्लम रिहेबिलिटेशन एक्ट के अंदर स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी बना रखी है. राइट, a commission who is only a mediator between slum dwellers and the builders, no town planning, no further power. Some SRE को, अगर किसी का माइक ऑन है, हेलो, या, am I audible to everyone? Yes, yes. Yeah. So a commission who is only a mediator between the slum dwellers and the builders. SRE को अगर आप डीपली स्टडी करोगे, जो है लीगल बैकग्राउंड से या जिन्होंने पहले काम किया है, तो SRE इज जस्ट अ फैसिलिटेटर बिटवीन द बिल्डर एंड द स्लम ड्वेलर्स. उनके बीच में फैसिलिटेटर है, यानी बिल्डर आएगा, माफिया आएगा, उनको जो बोलेगा दे देगा. SRE कुछ नहीं कर सकता, SRE से हाना करेगा. और जहाँ पे स्लम ड्वेलर्स कुछ बोलते भी है SRE में, तो वो यू नो इट डजंट हैव अ पावर रियली. अब इसी वजह से होता क्या है कि SRE के पास ज्यादा पावर्स नहीं है. बिल्डर मन मर्जी करते हैं, बिल्डर को दूसरों को भी जवाब देना पड़ता है, जो लैंड माफिया होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, सबको होते हैं. SRE ने सपना तो हम लोग को ये दिखाया, ठीक है, ये वाली सिटी का अपन ने सपना देखा कि भाई SRE आने के बाद, स्लम्स उठने के बाद ये वाली सिटी बनेगी. बट बिकॉज ऑफ करप्शन एंड SRE जो पावरलेस है, उसकी वजह से वी आर हेडिंग टू दिस. So while we are dreaming of a city like that, कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारी सिटी की फोटो ली जाएगी, हम लोग ये सब करेंगे, तो हम लोग जब वो ड्रीम कर रहे हैं, हमको ये बना बना के लोग दे रहे हैं. इफ यू कैन सी, हमने सिर्फ वर्टिकल स्लम्स खड़े किए, पहले हॉरिजॉन्टल था. ठीक है, अब इसमें SRE में हम लोग ने और भी बहुत सारे स्कैम्स निकाले हैं, जो हम लोग को पता चले कि बिल्डर्स कहाँ पैसा खाते हैं. दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. इवेंचुअली what we are dreaming of and what we are actually getting is just live in front of us. हमने सिर्फ वर्टिकल स्लम खड़े कर दिए, 3 साल बाद घर से पानी टपकने लगता है. ठीक है, अभी बारिश की में जो हालत है, वो सबके घरों की हालत भी वही हो चुकी है SRE प्रोजेक्ट्स में. तो अभी हम करें क्या? सरकार ये कर रही है, तो हमें 2 चीज याद रखनी है. स्लम फ्री मुंबई पॉसिबल है, ठीक है. दूसरा, सरकार ये कर रही है, तो सरकार अब ये करी तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हु कैन चेंज दिस? यू एंड मी. ठीक है, हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग इसको चेंज कैसे कर सकते हैं. तो अगर आप देखोगे कि सरकार SRE बना रही है और सरकार उससे खुश है, तो एज अब देखिए, जीरो स्लम मुंबई आप और मैं तो कर नहीं सकते टेक्निकली.
अब मैं तो जाके बोलूंगा किसको जीरो स्लम बना दो, या मैं तो कानून बना नहीं सकता. आई कैन नॉट मेक दोज लॉज, आई कैन नॉट इम्प्लीमेंट दोज लॉज एज अ कॉमन मैन. इसलिए मैं सरकार चुनता हूँ. आप और मैं बना नहीं सकते. लेकिन सरकारों को क्या चीज ड्राइव करती है? सरकारों को चीज ड्राइव करती है वो है लोग. अगर अपन एक वोट बैंक बन जाए, अपन सारे स्लम्स मिला के एक वोट बैंक बन जाए, सब लोग मिलके एक वोट बैंक एक आवाज में जीरो स्लम्स की मांग करें सही तरीके से, गवर्नमेंट शुड बी कंपेल्ड टू स्टे इन पावर एंड गवर्नमेंट शुड बी कंपेल्ड टू गिव अस द मुंबई ऑफ आवर ड्रीम्स. ये सिर्फ बातों में नहीं होता है. इंडिया अगेंस्ट करप्शन अपन ने देखा है, उसमें आउटकम बाद में गलत गया वो अलग बात है. बट जितने भी वेलफेयर स्कीम्स आई है, आरटीआई हो गए, उसके पहले बहुत बड़े बड़े आंदोलन चले थे. And eventually we got on paper what we wanted, and that is why we will have to become a vote bank, very simply. Okay, for a crime free, happy and prosperous Mumbai. So what is zero slum Mumbai? आप लोगों को जीरो स्लम मुंबई अब शायद ज्यादा समझ में आया होगा कि what is zero slum Mumbai. It's a non-political social campaign by citizens of Mumbai, right? For a city of our dreams, a campaign to get a centralized monitored town planning authority for rehabilitation of Mumbai. अब जैसे मैंने SRA का बताया आपको कि SRA legally is just the mediator, does not have a tooth. Secondly, कोई प्लानिंग नहीं है. कोई भी बिल्डर जाता है, स्लम में बात कर लेता है, मैं आपको घर दूंगा, फिर SRA के पास जाता है, SRA अप्रूवल दे देती है और वो बिल्डर घर बना देता है. उसके बाद उसका काम क्या कैसे चलेगा, आसपास की जमीनें कैसे होंगी, वो नहीं पता किसी को. वो वहाँ पे लग्जरी फ्लैट्स बनाता है, बाकी सबको गंदा कर देता है, लग्जरी फ्लैट बना के बेच के अपना पैसा लेके निकल जाता है. नो टाउन प्लानिंग, नो नथिंग. So what we want as of now, with the respect to campaign, we want a centralized monitored town planning authority, right? जिसमें planning की power सारी उसकी होगी. Builders would be just the executioner of the project, not the owners of the project. The owners would be the government and the people of Maharashtra. So builders would become the executioner of the project. Centralized authority planning करेगी कि कब कहाँ कैसे क्या होना है. ठीक है. इस प्लान मास हाउसिंग रियली पॉसिबल? अब मैं जो अभी बात कर रहा हूँ इसके लिए डिटेल में अपन बहुत ज्यादा बातें कर सकते हैं, लेकिन क्या ये एक्चुअली पॉसिबल है? तो यस, इट इज एक्चुअली पॉसिबल. न्यूयॉर्क ने किया है ये काम. ठीक है. न्यूयॉर्क पहले ये ऐसा दिखाई देता था. वहां पे एक सेंट्रलाइज प्लानिंग अथॉरिटी आई, पूरे न्यूयॉर्क को कैसे प्लान करना है, उसके बाद न्यूयॉर्क आज ऐसा दिखता है. डेफिनेटली नए स्लम्स बने, बाहर के साइड पे बने, वी कैन कीप दैट आउट ऑफ क्वेश्चन, बट क्या था और क्या हो गया ये न्यूयॉर्क ने करके बताया. सिंगापुर ने सेम काम किया था. सिंगापुर का एग्जांपल तो अभी पिछले 30 साल का ही है, हमारे पैदा होने के बाद. तो आप हमारे सामने सिंगापुर ने भी सेम काम किया कि ये उसकी हालत थी और ये आज सिंगापुर दिखाई देता है. वी फील प्राउड व्हेन वी गो टू सिंगापुर. मैंने जितने लोगों से बात की है, जितने लोग जाके आते हैं बोलते हैं अरे नीचे आपको एक कतरा नहीं दिखाई देगा, गंदगी का एक कतरा नहीं, एक रैपर तक आप नीचे नहीं फेंक सकते हो. इतना साफ है सिंगापुर, इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड है, और सब वही लोग हैं, सब इंडियंस भी है वहाँ पे. ऐसा नहीं है इंडियंस नहीं है, बट पीपल हैव डन इट इन द पास्ट. वी कैन डू इट टू इफ यू कैन सपोर्ट. ठीक है. अब होगा कैसे? अगर मैं अकेला चिल्लाता हूँ ना कि भाई हम लोग को जीरो स्लम्स चाहिए, हम लोग को जीरो स्लम चाहिए, तो लोग बोलते हैं अरे बेचारा दर्द में है, दारू पी के बैठा है, कुछ भी. एक अकेले की आवाज ऐसी समझ में आती है. लेकिन जब वहीं पे 1000 आदमी उठ के बोलते हैं कि हमको जीरो स्लम्स चाहिए, 1 लाख आदमी बोलते हैं, या जाके 60 लाख आदमी बोलते हैं कि हमको जीरो स्लम्स चाहिए, हमको सही तरीके से घर चाहिए, हमको सही तरीके से मुंबई चाहिए, तब वो जो आवाज होती है वो पूरे वर्ल्ड मीडिया तक जाती है. और जब वर्ल्ड मीडिया में वर्ल्ड लेवल पे कोई न्यूज बनती है तो उस पर एक्शन भी होता है. ये सब हम लोगों ने देखा है अपनी ही लाइफ टाइम में. मी टू कैंपेन देख लीजिए, आइस बकेट वाटर कैंपेन देख लीजिए, जितने भी कैंपेन्स थे, जब सारी दुनिया में वो चीज फैलने लगी तब जाके उस पर सरकारों ने काम चालू किया. राइट. सो हाउ कैन यू सपोर्ट? तब इसकी बात कर लेते हैं कि भाई ठीक है, मैं तो एक आवाज हूँ, कैसे कैसे कर सकते हैं. द मिनिमम दैट यू कैन डू इज 1 फेसबुक लाइक. ठीक है. द मिनिमम, बेयर मिनिमम, ये तो हर कोई कर सकता है. आज मानो ना मानो हम में से हर लोग कम से कम दिन का 45 मिनट फेसबुक पर गुजारते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, फेसबुक या व्हाट्सएप. सो अगेन सोशल मीडिया दैट वे. मिनिमम 45 मिनट्स हम लोग फेसबुक या व्हाट्सएप पे गुजारते हैं. हम लोग जाके एक सिर्फ कोई जो
सही काम कर रहा था उसको एक लाइक दे दे, कमेंट, एक शेयर दे देना, उसको काम करने की ताकत बढ़ जाती है कि सब पब्लिक केयर करती है. नॉट ओनली फॉर दिस कैंपेन, कहीं भी जाओ अगर आदमी अच्छा काम कर रहा है, प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर और दूसरों का काम, बिकॉज टुडेज मीडिया इज सोशल मीडिया. आज अगर आप सोशल मीडिया पे प्रेजेंस दिखाते हो, जिनकी प्रेजेंस होती है उनको अगर अप्रिसिएशन मिल जाता है, दे फील गुड. इट डज नॉट टेक इवन 2 seconds. मैं जाता हूँ कहीं पे, मेरे को कोई आदमी अच्छा काम करता दिखता है, लाइक कर दिया, हो गया, सेट, मैं नेक्स्ट पे गया. दोस्त की पिक्चर है, उस पर कमेंट मार दिया, फिर आगे गया. तो इट जस्ट टेक्स 1 second टू गिव लाइक. दैट द बेयर मिनिमम. आगे जितने भी जैसे अनमोल है या सर्वेश है या बाकी जो भी लोग हैं, आप लोग जितनी एक्सपर्टीज दोगे उस तरीके से हम लोग एक सेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी का, अब ये होता क्या है, ये आंदोलन नहीं है, इसका एक आउटकम होगा. आउटकम क्या है कि ये जो सेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी होगी उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसमें किस तरह के घर बनेंगे, उसमें लोगों को कैसे एलोकेट किया जाएगा, ये सब के ऊपर एक पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी जो गवर्नमेंट मना नहीं कर सकती है. मना क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि साहब ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट लीगल लोग, लॉयर लोग बनाएंगे, अपने आर्किटेक्ट्स वुड बी देयर, अपने अनमोल जैसे कंसल्टेंट्स होंगे, ये सब मिला के समन्वय से एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे कि साहब आइडियल मुंबई की एक सेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऐसी होनी चाहिए. जब अपन ये देते हैं सरकार को, तो ये होता है कि साहब इनके पास ऑन पेपर भी नॉलेज है, दे कांट जस्ट ऐसे कि हवा में बात कर रहे हैं. राइट, जब अपन ये सब करते हैं, आज मैं इतनी कॉन्फिडेंटली आपको बोल सकता हूँ कि साहब ये जो मैंने आपको नंबर्स दिखाए, दीज आर एक्चुअली राइट नंबर्स, बिकॉज मैंने उतनी रिसर्च की है. अगर कोई भी मेरे को चैलेंज करेगा तो मैं वहां पे जाके बोल सकता हूँ, साहब ये देखो, ये मैं नहीं, ये सरकार कह रही है, ये मैं नहीं, ये आर्किटेक्ट्स कह रहे हैं, ये मैं नहीं, ये बाकी लोग कह रहे हैं. दैट वे विल प्लान अ सेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी फॉर पीपल, राइट. एंड उसमें क्या क्या होना चाहिए, ये अपना एक फाइनल सबमिशन होगा टू द गवर्नमेंट in about 1.5 years from now or 1 year from now कि साहब ये हम लोग को ड्रीम मुंबई के लिए चाहिए. So join us if you are an academician, lawyer, architect, सब लोगों की जरूरत है अपने को. राइटर कंटेंट लिखेंगे सोशल मीडिया के लिए, राइट. जो पीपल्स पर्सन माने जो बहुत खुश लोग रहते हैं, जो 10-12 लोगों को एक साइड में, आपने देखा होगा कि वो 15-20 लोगों को आराम से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. म्यूजिशियंस रहते हैं, वीडियोग्राफर्स रहते हैं, everybody can contribute to our campaign. Every effort will matter and every demand will make our voice stronger, right. Just from a like which needs a second, जो मैंने आपको भी बताया. हम लोग कौन है, चलो ये तो बात हो गई कि अब पूरा कैंपेन क्या है मैंने आपको बता दिया. मुंबई मार्च का एक छोटा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में दिया था. टुडे हु आर अस, तो साहब हम लोग ने वेबसाइट से लेके अपनी मैनेज टीम और मैनेजमेंट टीम, उसके बाद मुंबई मार्च के फेसबुक पेज, ट्विटर अकाउंट, सब हम लोग ने यहाँ पे डाल रखा है. आप हमारे बारे में जान सकते हैं. रिवर मैन ऑफ मुंबई के नाम से सर्च मारेंगे तो आपको गोपाल भाई जवेरी का नाम मिलेगा. यू कैन नो आवर क्रेडेंशियल्स फ्रॉम देयर, दैट वी आर नॉट जस्ट एनीवन हु इज टॉकिंग अबाउट एनीथिंग. हम लोग ने पिछले 8 साल में वी लिटरली स्लॉट फॉर मुंबई. तो a lot of things can be known कि we are credible people, our campaign is credible. Join us. And join us in the sense you guys have already joined us. We are really happy for that. And यही जो मैं आपको बात बोल रहा हूँ, ये आपको पहले प्रचार करनी है, बिकॉज राइट नाउ हम लोग कोरोना टाइम्स में, कोरोना में हम घर से बाहर निकल नहीं सकते. लेकिन कोरोना में मैंने जैसे आज 20 लोगों को सेशन दिया, आप लोगों को मन में एक बात तो पता चली है कि साहब कोई चीज पॉसिबल है, आपका ज्ञान वर्धन हुआ है. You probably may contribute, may not contribute. We are okay with that. हम लोग ने 8 साल से लोगों को जुड़ते हुए देखा है, लोगों बहुत चीजें देखी हमने. But I know that you will contribute because now that you know about Mumbai, you would love to contribute more and more to our cause. So with that, I'll stop this presentation right now and I'll open the session to anyone who wants to ask me a question about the session, and we'll open this session for a Q&A. तो वी आर ऑन टाइम, आधे घंटे में प्रेजेंटेशन भी हो गया अच्छा से. So yeah, anyone who has any questions, who has something to suggest, आप अपना माइक खोल के बोल सकते हैं. इंग्लिश, हिंदी, मराठी सब चलेगा. या 3 लैंग्वेज मेरे को आती है, साथ में मारवाड़ी. आई एम फ्लुएंट इन 4 लैंग्वेजेस. Ask me in any language.
Feel free. Hello. Yeah, go ahead. Yeah, Priya here. So my Yeah. question is, you said that we'll be building buildings for the people who are living in slums now. So Right. after that, what will they do? Like, what work will they do, or how will you provide them employment to earn a living? Thank you for asking this, Priya. This is a very common question which I get in every session. मैं आपको एक बताता हूँ होलिस्टिक टाउन प्लानिंग क्या होती है. एक अपन मालवनी एरिया के लेते हैं. मालवनी में कपड़ा कारीगर बहुत रहते हैं वहाँ के स्लम्स में, अगर आप देखेंगे. ठीक है, मैंने आपको जैसे आपने देखा 33% का पूरा रीडेवलपमेंट हो सकता है उनके घर का, तो बाकी 67% हम क्या करेंगे? हम लोग वीरवानी जैसा एक इंडस्ट्रियल एस्टेट बना देंगे. दिस इज जस्ट अ रैंडम एग्जांपल. ओके, इंडस्ट्रियल एस्टेट में हम लोग से उनको जो गारमेंट फैक्ट्री लगाते हैं ना, उनको गालास देते जाएंगे. सो दैट वे व्हाट हैपेंस कि इंडस्ट्रियल एस्टेट बन गया, गारमेंट फैक्ट्रीज वहां लग गई. मालवनी में जो रह रहा है वो 5 से 10 मिनट के अंदर अपने फैक्ट्री पहुंचेगा. अब सिर्फ जो मैंने बात की थी कि सिर्फ घर हमारी रिक्वायरमेंट नहीं, बहुत सारी चीजें चाहिए. यानी कि एक मेरे को काम की जगह, ठीक है, दूसरे मेरे को स्कूल कॉलेज और अपना ग्रोसरी स्टोर्स और बाकी सब चीज की भी जरूरत होती है. रिक्रिएशन पार्क की जरूरत होती है किसी भी आदमी के लिए. ये सारी की सारी जो होगी वो उसी के 5 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ आ जाएगा. राइट. तो अगर मैं स्लम्स को रीडेवलप करता हूँ, पास ही में मुझे ऑफिस मिलता है, पास ही में मुझे फैक्ट्रीज मिल जाती है काम करने के लिए. प्रिया, यू हैव टू अंडरस्टैंड, मुझे जिंदगी में ट्रेन यूज नहीं करना पड़ेगा. मैं ट्रेन सिर्फ सैटरडे संडे अपनी फैमिली को घुमाने के लिए, चर्चगेट घुमाने के लिए लेके जाऊंगा. मुझे ट्रेन में जाने की जरूरत ही नहीं है, मुझे रोज 3 घंटे मरने की जरूरत ही नहीं है. सो दिस इज होलिस्टिक डेवलपमेंट. आज आप ये लाइव आज बॉम्बे में देखना हो आपको, तो आप जाइए ओबराय मॉल के पास में, गोरेगांव में ओबराय मॉल है. मॉल भी वहीं पे, पीछे यशोधाम स्कूल है, पीछे ओबराय स्कूल है. ऐसे 4 से 5 स्कूल है उसकी विसिनिटी में. वीरवानी इंडस्ट्रियल एस्टेट वहीं पे. मेरे खुद के कजिन, उन्होंने अपने ओबराय के पीछे वाली सोसाइटीज में घर लिया है. वीरवानी में खुद का गाला भी ले लिया है. इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे. 15 मिनट में घर से ऑफिस पहुंच जाते हैं. दोपहर को गर्मा गर्म खाना आता है और वो लोग वापस रात के टाइम पे, शाम को चाय आ जाती है. सब घर का, कोई टेंशन ही नहीं. या सो दिस इज व्हाट होलिस्टिक प्लानिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि ये होना चाहिए. ऐसा नहीं कि बस वो घर दे दिया, बाद में जाके फिर वो ट्रेन में मर रहे. राइट. या, थैंक यू. वेलकम. सो थैंक्स फॉर दैट क्वेश्चन. दैट इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट वी गेट, कि उनको एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा. उनको एम्प्लॉयमेंट ऐसे मिलेगा. मोर क्वेश्चंस, एनीवन? अच्छा, तो देयर इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन कि लोग पूछते हैं क्या, गो अहेड. नहीं, आई थिंक उसका ये चालू है शायद. I think Saurabh wanted to say something. Yeah, sure. I'll ask you. Yeah, I had this is Saurabh here. Yeah, sir. It's a very good plan. Obviously, this will take some time before it comes to a level, and we shouldn't expect 100% influence in it. Like zero slum is the ideal target. Now, one thing that we need to look at ensuring is that we stop. Like the first thing that we need to look at is stopping illegal or unplanned slums coming up, because this is like a water. If you are wanting to clean up, water is a good example for us, because if you want to clean up a place or dry up a place, you have to first look at the source and stop it, and then you can start drying it. What you have started is a good thing, that slums are being made, but we should see that we ensure that new ones don't come in. That I think you must have planned for it. Yeah, so I'll tell you about that. Saurabh, great question. You'll have to mute yourself. ये एक अगेन एक कॉमन क्वेश्चन है जो हमारे पास आता है कि और स्लम नहीं बने. मैं आपको स्लम्स के ओरिजिन पे लेके जाता हूँ. स्लम्स क्यों बन रहे, कैसे बन रहे. गवर्नमेंट लैंड्स पे इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है. एक छोटा सा झोपड़ा बनता है, पब्लिक इग्नोर कर देती है. 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6. तो इसकी वजह से क्या होता है कि आदमी के पास रहने को जगह नहीं है. माइग्रेशन हो रहा है बिकॉज मुंबई का रिक्वायरमेंट है. एक बात को समझना, जब तक मुंबई से रिक्वायरमेंट नहीं आ रहा है तब तक लोग माइग्रेट नहीं होने वाले. आज मेरे को लोगों की जरूरत है, आज मुझे बाकी सब लोगों की जरूरत है, तब भी लोग आ रहे हैं.
क्योंकि उनके पास जॉब्स है। अगर मैं मुंबई से रिक्वायरमेंट खत्म कर दूं तो लोग नहीं आएंगे, रिक्वायरमेंट खत्म होगी नहीं, विच मीन्स मुंबई का रिक्वायरमेंट है, वी नीड दीज पीपल। अगर आप 1 करोड़ में घर देखते हो, आप दहीसर के आगे निकल जाइए, आपको 1 BHK 1 करोड़ के नीचे मिलेगा नहीं, अभी फिर भी स्लम पे 80 लाख से नीचे नहीं मिलेगा। तो साहब वो कैसे अफोर्ड करेगा? इवन रेंटल हाउसिंग अफोर्डेबल नहीं है। घूम फिर के उसके लिए एक ही ऑप्शन बचता है कि मैं स्लम्स में जाऊं। स्लम्स कैसे और नहीं बढ़े, तो इसके लिए जब आप किसी से बात करो, इवन सरकार ने कमेंट किया था कि जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन के लिए आते हैं या कोई आते हैं जो 6 महीने 8 महीने 10 महीने के लिए आते हैं, उनके लिए टेम्पररी हाउसिंग होता है गवर्नमेंट की तरफ से, राइट? सो वी कैन बिल्ड दोस टेम्पररी हाउसिंग इन मुंबई, जहां स्लम्स हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। साहब रहना है वहां पे, उस 50 रुपया दिन का किराया होता है, 2-3 हजार रुपया रेंट होता है, आप जाइए, गवर्नमेंट का हाउसिंग है। So housing is something that food, clothing and shelter is a basic need. Housing को हम replace नहीं कर सकते। Government needs to build those housing for people so that they don't have to go back into the slums. So that would be a part of the plan, जो अपना जो plan बनाने वाले हैं, it would be a part कि साहब हम इतने माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं बॉम्बे में, जिसके लिए इतनी गवर्नमेंट हाउसिंग की जरूरत है। गवर्नमेंट वुड नीड टू बिल्ड दोज इन सम ऑफ द स्लम प्लेसेस। So I hope Saurabh that answers your question. Hello. Saurabh, does that answer your question? Hello. No problem. Anyone else wants to ask a question? So adding on to what Aditya sir answered, like so abhi to we have had this question coming up in a lot many conversations. So यही बात है कि अभी right now if you try to impose like empty of the slums, अभी अगर समझो हम दहीसर में शिवाजी नगर वाला स्लम कहीं पे ये कर देंगे, उसको क्लियर कर देंगे, you give them rehabilitation somewhere, वो समझो बोरिवली में उनको rehabilitation दे दिया, but इसका मतलब ये नहीं कि मुंबई के सभी स्लम्स क्लियर हो गए। सो अभी उनको दहीसर में अलाउड नहीं है तो वो लोग किसी और जगह पे जाके वो वाला घर भी लेंगे और किसी और जगह पे जाके भी एक और स्लम बना लेंगे। बट when what we are talking about the centralized development authority, that plan would provide for rehabilitation to all the slums throughout the city wherever there are. So even if अगर अभी समझो बुराई दहीसर में वो लोग ने क्लियर कर दिया तो वो सिटी के किसी और जगह जाके बता नहीं सकते कि हम लोग अभी नया स्लम बना रहे, कि all the slums have been illegitimized at one go and all the slums are getting an alternative at one go. So there remains no space for them to justify making up new slums. I mean, I remember Aditya sir, you had mentioned कि आपका एक पुलिस वाले के साथ conversation हुआ था. You might want to share about that. Yeah. So Avi, thanks for reminding that, Gautam. I really like Gautam. Gautam को भी शायद 1-1.5 महीने पहले मैंने ये presentation दिया था, and Gautam has really gone into it, and he's also become an expert like that way. तो मैं एक पुलिस वाले के साथ conversation हुआ था, साहब इतने slums है, illegal है, और जो रोड पे रहते हैं उनके बारे में हुआ था। तो ना साहब ये रोड पे सोते रहते हैं, इलीगल है, आपको पता है, कुछ करते क्यों नहीं हो? पुलिस वाले ने ये बोला कि सर मैं इसको कहाँ डालूं, आपके घर में लेके जाओ या जेल में लेके जाओ, जेल में जगह है, वहां डालूंगा तो मुझे खाना खिलाना पड़ेगा, तो मैं इसको रखूं कहाँ पे? ये सड़क पे है, इसके पास घर नहीं है, मैं इसको रखूं कहाँ पे? आप ये बता दो तो मैं उसको उठा देता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ वेरी बिग इशू विद महाराष्ट्र गवर्नमेंट। पीपल विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि जब हम सारे स्लम्स को एक बार में सेंट्रलाइज अथॉरिटी के अंदर बना के दे देंगे एक ऑल्टरनेटिव, देन दे वोंट बी देयर टू कंप्लेन कि भाई वो कहीं और जाके बना नहीं पाएंगे, एंड बाद में अगर वापस बनाते हैं तो वी कैन पुट देम इन द जेल। तो वो जीरो स्लम में उसका भी अपन एक वो बना देंगे कि साहब ये सेंट्रलाइज जेल है, जो जो ऐसी स्लम वाली हरकतें करेंगे, इलीगल ऑक्यूपेशन करेंगे, उनको हम यहाँ ला के डाल देंगे। A lot of things can be worked out that way. So I hope that answers the question, Saurabh. Hello. Yeah, go ahead. Yes, it does. Thanks. Thanks a lot, Saurabh. So I think Lalita wants to ask something. Lalita, go ahead. Yeah, I wanted to ask that which places would you go to? I mean, I would not want you all to go to RA or Sanjay Gandhi National Park or something like that. I mean, use those spaces.
Lalita, we also don't want to go there. We are fighting for saving national park and everywhere. ये जो existing slums है ना, it is 20% of Mumbai land. It has been recognized by SRA. SRA की website पे पूरा वो दिया है. इसी land में जो, क्योंकि slums ऐसे होते हैं, एक slum, दो slum, तीन slum ऐसे, ठीक है, इसी land का 33% as per my calculations में अपन पूरे slum को redevelop कर सकते हैं. There's 67 is available for the city, for the disposal of the city. Okay. So वहीं पे सब होगा. No extra land, I promise you. In fact, mangrove के भी जो slums है illegal, उनको भी हम लोग वहां से हटवा के यहाँ पे fix कर सकते हैं. हम लोग वहां तक सोच रहे हैं. Interim period, where will you house them? So ये जब भी होता है, ये सब एक साथ में slums नहीं टूटेंगे. It would be phase wise. तो जैसे एक जगह पे मैंने इतने अपने पास alternate housing है कि एक बड़ा cluster को लेके हम लोग दूसरी जगह पे घर दे सकते हैं. In the meantime, वो जब cluster develop हो जाएगा छोटा सा, तो वहां पे सबको shift करके बाकी का plan develop होगा. So there are governmental ways and there are legal ways to actually get it done. कोई कहीं से बाहर नहीं जाने वाला है, सब उसी एरिया में रहने वाले हैं. Because as it is, the RA and all are all endangered. So I'm also an RA warrior. Lalita, we also fought for RA. I promise you, even national park के लिए हम लोग भी लड़ रहे हैं. National park में से वो underground निकालना चाहते till थाने. Yeah. तो वो बहुत सारी लड़ाई अपन भी लड़ रहे हैं. Nothing from the, in fact, we are trying to save the mangroves as well. तो जो existing space है 20% recognized slum में सारा development वही होगा. No extra space is required to be taken from any government body. Okay, thank you. You're welcome. So great. ये नया question है इस बार. Thanks a lot, Lalita, for that. Can expect more questions, please. Hello, sir. Yeah, go ahead. Can I? हाँ, sir. अगर ऐसा अगर हो सकता है कि स्लम्स में ना गंदगी हो, लोगों को पानी घर घर ना मिले, तो भी एक ब्लॉक बन जाए कि हाँ, फॉर 10 हाउस ये एक रहेगा नल, या ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करे स्लम्स के अंदर ही, तो क्या सीन होगा सर जियोग्राफिकली? कुछ इससे फर्क पड़ेगा क्या? मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है. तो वो स्लम्स इलीगल है. बस अगर आप ऐसे 10-10 घर के बीच में एक पानी का वो दे दोगे तो इट विल जस्ट रिड्यूस जो अभी वाला है. अब 2000 लोग टॉयलेट यूज करे तो उसके बाद 200 लोग करेंगे. दैट इज नॉट रियली अ सोल्यूशन कि उनको एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में दिया जाए, बिकॉज एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में वो फिर बाद में वापस स्लम्स बनाने लग जाएंगे. यू हैव टू गिव देम पक्के मकान. अगर आप आज जाके हालत देखोगे, बॉम्बे में 1.5 महीने से बारिश हो रही है, आपको पता, एक भी दिन सूखा नहीं पड़ा. एवरीबॉडी वुड एग्री टू दिस कि पूरी एकदम तड़ातड़ बारिश नहीं हुई है, लेकिन एक भी दिन सूखा नहीं पड़ा है. एवरी 2 hours देयर इज इंटरमिटेंट रेन. स्लम्स की हालत जाके देखिए, जो कच्चे मकान बने सब में अभी पानी बहता ऊपर से. आपको कुछ वीडियोस भी मैं शेयर करूंगा इसी ग्रुप पे, अगर इफ यू आर ओके विद दैट. नहीं तो कई लोग को मेसी लगता है ना, तो इफ यू आर ओके विद दैट, मैं आपको वर्ली साइड के कुछ स्लम्स के वीडियो शेयर करूंगा. वो देख के आप सोचोगे साहब नहीं, हमको बिल्डिंग ही बनानी है. वी डोंट वांट existing slums to stay. Second major problem that we have is आप infrastructure पानी का दे रहे हो, जो रह रहे हैं उनका क्या? कोरोना में आपको पता है क्या हुआ? I went on the ground, मतलब to actually check. तो आपको तो ये 200 स्क्वायर फीट के मकान में 8 से 10 मजदूर रहते हैं. ये हमारे स्लम्स की एक्चुअली रियलिटी है. 200 स्क्वायर फीट के मकान में 8 से 10 मजदूर रहते हैं. ठीक है, आप कोरोना को कैसे कंटेन करोगे? अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये 200 स्क्वायर फीट का मकान है ना, इसका जो गेट है उससे निकलते 3 फीट आगे, सिर्फ बीच का 3 फीट का रास्ता है. 3 फीट आगे वापस वही 200 स्क्वायर फीट का एक स्लम है, एक छोटा झोपड़ी है, जिसके अंदर फिर 8 से 10 मजदूर रहते हैं. हाउ डू यू डू सोशल डिस्टेंसिंग? और आप 24 घंटे एक कमरे में नहीं बंद रह सकते. वी हैव बिग हाउसेस. अभी मैं एक कमरे में बैठा हूँ, मेरे बाकी फैमिली मेंबर्स को प्रॉब्लम ही नहीं है. सो वी हैव बीन ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ थिंग्स. आज सोचिए, आज उनमें से कोई अपने पास होता, वो 10 लोग एक ही कमरे में बैठे होते तो कितना डिस्टर्बेंस होता. एंड कैन यू रियली लिव लाइक दैट? सो द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, even as a basic unit of a house, is not enough for people to live a good life. Hello. Yeah, go ahead. Who's next? Lalita. Lalita, go ahead. You
said about 8-10 लोग 200 square feet केस में रहते हैं. Right. So how will you give them the houses? I mean, they will be from different families, different. They will be coming from different places. You know, some from MP, UP, Bihar और कहाँ से आते हैं और सब इधर यहाँ पे. Even if they come from one state only, they may be coming from different places and staying together. Right. So how solve the problem of that? Two things. They are on rent, Lalita. They are on rent. Owner कोई और है. Okay. मुस्लिम का. Secondly, अगर उन्होंने खरीदा भी है तो लीगली एक फ्लैट 8 के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा. So your okay. You become this. जो मेरे पहले फ्लैट का ओनर है उसका भी ऐसा नहीं कि हर एक को दे देंगे. So Lalita, a lot of legal things जो 7 years का रूल है जिससे 7 साल पहले आके घर बनाया था उसी को. ऐसा नहीं कि भाई फ्री में स्लम दे रहे तो मैं भी जाके स्लम खड़ा कर लूं. That should not happen ना. तो जब भी होता है we see that 7 years का जो गवर्नमेंट का रूल है कि जो 7 साल पहले जिनके नाम पे ट्रांसफर हो चुके थे so उनको घर मिलेगा. जो बाकी सारे will have to go in the temporary accommodation by the government by paying the rent. But the owner of the place, no, he may not be a slum dweller at all, for all you know. See, वो अगर वैसे में अगर अपन जाएंगे ना, the owner of the place may not be a slum dweller but someone. So either we can do a legal case if he's illegally acquired that place, or we can actually think about the majority of the population. Yeah. साहब अगर वो ओनर बन के बैठा है वहाँ पे तो कहीं ना कहीं हमारे सरकार की नाकामी है. Yeah. अब वो अगर 7 साल से ओनर बन के बैठा है वहाँ पे तो आप कुछ कर भी नहीं सकते आप लीगली. Yeah. 7 years if you own up, if you have property का अपन वो लेते हैं, कब्जे में ले लेते हैं, तो even that can be challenged in the court कि सब ये मेरी जमीन हो गई है. No, why I'm asking is that we want a zero slum Mumbai. Right. But it doesn't mean that, you know, we have to take care of the slum dwellers in the sense that they also have a good life. I mean, not the life, maybe grand life, but their basic needs need to be this. Right. So Lalita, with this, I'll tell you one thing. Be housed with this. Yeah, with regards to taking care of the needs, I promise you, Lalita, मैंने बहुत लोगों से बात की है, slum dwellers से बात की है, they are ready to buy the house. खैरात किसी को नहीं चाहिए. बना के तू वो घर खरीदने को तैयार है, लेकिन 1 करोड़ का घर कैसे अफोर्ड करेगा तू? इलीगल. अच्छा, ये बहुत अच्छा ललिता आपने सवाल पूछा है. मैं सबको बोलूंगा इस पे थोड़ा गौर से सुनना मेरी बात को. आपको पता है एक फ्लैट बनाने का कॉस्टिंग क्या है? स्लम में एसआरए में 300 स्क्वायर फीट जगह दे रहे हैं, मैं 400 स्क्वायर फीट की बात कर रहा हूँ. मैंने आर्किटेक्ट से बात की, मैंने बिल्डर से बात की. कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट 400 स्क्वायर फीट इज जस्ट 1500 रुपीज पर स्क्वायर फीट. राइट. यानी अगर आप एवरेज कॉस्ट ऑफ पूरी बिल्डिंग का बनाते हो उसमें जितना कंस्ट्रक्शन हुआ है, एवरेज कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज ओनली 1500 रुपीज पर स्क्वायर फीट. और 3200 रुपए में ओबरा और हीरानंदानी जैसे बिल्डिंग्स बन जाती है. विच मीन्स अगर मैं 400 स्क्वायर फीट का मकान बना रहा हूँ और 1500 की मेरी कॉस्टिंग है तो 8 लाख, 6 लाख से चालू करते, थोड़ा महंगाई बढ़ गई, 8 लाख से 12 लाख कॉस्टिंग में मैं पूरा घर खड़ा कर सकता हूँ. लेकिन बॉम्बे में आपको 1 करोड़ के नीचे घर नहीं मिलता है. ये जो 12 लाख से 1 करोड़ का डिफरेंस इज द स्कैम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. नाउ इट्स नॉट अ स्कैम, बट ये 12 लाख से 1 करोड़ का डिफरेंस किसकी जेब में जा रहा है? भाई कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन तो उतना ही है, ठीक है. लैंड गवर्नमेंट फ्री में दे रही है, फ्री में भी चलो गवर्नमेंट को भी ले दो पैसा. 20 लाख में अगर आप मेरे को बोलोगे तो मैं बॉम्बे में 400 स्क्वायर फीट का मकान दे सकता हूँ, इवन लैंड का पैसा गवर्नमेंट को देके. 20 लाख पे आप ईएमआई कितना एक्सपेक्ट करते हो आएगा? 10 से 20 हजार रुपया, 20 से 30 हजार रुपया अगर अपन सही इंटरेस्ट रेट पे देवे तो. एक एवरेज फैमिली की जो स्लम्स में रह रहे हैं उनकी हाउस होल्ड इनकम है 70,000 रुपए. चौंक जाओगे आप, लेकिन है 30 से 40 हजार वो ऑटो वाला कमा लेता है या कोई भी जो दूसरा काम कमा लेता है. जो वाइफ होती है बाइक का काम करती है, उसे करके वो भी 20-30 हजार रुपए कमा लेती है. छोटे काम करके लोग 10-20 हजार रुपए और कमा लेते हैं. 50 से 70 हजार इनकी एवरेज हाउस होल्ड इनकम है. और आपको भी पता है 20 हजार के नीचे तो ऐसे बॉम्बे में सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे जितनी महंगाई और सब चीज है. 50 से 70 हजार इनकी हाउस होल्ड इनकम है एवरेज पे. तो एक बात बताओ, मैं अगर कहीं बिल्डिंग, अब अपन ये पूछते हैं ये लोग स्लम में क्यों रहते हैं, इतनी इनकम है,
ये लोग स्लम में इसलिए रहते हैं क्योंकि बिल्डिंग में जब फ्लैट लेने आते हैं तो 30,000 का रेंट लगता है, फ्लैट खरीदने जाते तो 30-40,000 रुपए का EMI आ जाता है 1 करोड़ रुपए। तो साहब मैं 50-60-70,000 रुपए में स्लम में तो राजा की तरह जीता हूँ। मेरे घर पे AC भी है, मेरे स्लम में AC भी है, मेरे स्लम में ऊपर हर एक के देखना अभी मुंबई से निकलते वक्त अपना सबके ऊपर टाटा स्काई लगा हुआ है, अंदर सबके LED टीवीज है। तो 50-70,000 में मैं स्लम में तो राजा की तरह रहता हूँ, मेरी सारी जरूरतें पूरी होती है, 4 मोबाइल 5 मोबाइल सब कुछ। अगर वही चीज मैं घर लेने पे आ जाऊं 1 करोड़ के, तो मेरे पास जेब खर्च के लिए 10 से 20,000 रुपए बचेंगे। दैट इज द रीजन दे आर फोर्स्ड टू लिव इन द स्लम्स। वरना एक आप ही सोचिए यार, कोई नहीं चाहता उसका बच्चा स्लम में रहे। इवन आई मेरे को सोच के ऐसा लगता है मैं कैसे अपने बच्चे को स्लम में पाल सकता हूँ। आप उनका मजबूरी भी देखिए कि उनको स्लम में क्यों रहना पड़ता है। So we are giving away nothing for free. What they for 7 years if they have taken that इतना torture लिया है तो उनका राइड भी बन जाता है एक तरीके से। Right? I hope that answers the question, Lalita. Yeah. Yes. Absolutely. Thanks a lot. So more questions, anyone? So we have 10 more minutes. अभी लोग अपने questions पूछ सकते हैं. So we have 10 more minutes. तो 1.5 hours हो जाएंगे. 7:30 is the time for everyone. Feel comfortable getting. Yeah, go ahead. sir. Yeah, go ahead. Yeah, Nikhil, tell me. मैंने सुना था, मैंने रिसर्च नहीं किया था लेकिन मैंने न्यूज़ में सुना था, अगर रॉन्ग होगा तो मुझे बता देना, कि पूरे एशिया में सबसे ज्यादा फंड्स BMC को मिलते हैं। कोई भी कॉर्पोरेशन के हिसाब से कोई भी देश के सबसे ज्यादा फंड्स BMC को मिलते हैं पूरे एशिया में। राइट। और मुसीबत में हमारे यहाँ कई देश है जहाँ पे ऐसी कुछ पॉलिसी नहीं है हार्ड एंड फास्ट ये माइग्रेंट्स के लिए या इसके लिए, लेकिन वो देश इतना प्रॉब्लम फेस नहीं करते। हमारे यहाँ पॉलिसी भी है, सिस्टम भी है, तो भी हम फेल हो जाते हैं। और आप जो बोल रहे हो, मैं जो बात कर रहा हूँ, हमने पढ़ी है, मतलब मैंने तो देखी नहीं, मैंने आपसे सुनी और थोड़ी पढ़ी भी है किधर किधर। लेकिन जिसको आग लगे सर, वो ज्यादा चिल्ला पाएगा ना, हमसे ज्यादा वो चिल्ला पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग कंफर्टेबल है स्लम में रहने को भी, लेकिन ज्यादातर लोग वो भी चाहते हैं कि हम स्लम छोड़ दे। तो अगर वही लोग हमसे ज्यादा चीखे चिल्लाए, सरकार को बोले कि तुम पूरे एशिया में सबसे ज्यादा पैसे तुम्हें मिल रहे, तो हमें हमारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम देखो, तो आई थिंक के उनके हाथ पैर फिर ऑफिसर से ज्यादा चलेंगे काम करने में। निखिल, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस क्वेश्चन। आई डोंट नो गौतम ने आप लोगों को पहले सेशन बताया था क्या? बिकॉज जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं एग्जैक्टली इसी लाइन में नहीं, बट एग्जैक्टली इसी लाइन में क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू फॉर फाइनली आस्किंग मी कि अपना कैंपेन क्या है, मतलब। हाँ सर। और ये कैसे अपना रियलाइज होने वाला है, ठीक है? सो द कैंपेन इज वेरी सिंपल। मैंने जब आपको इंट्रोडक्टरी कॉल पहले दिया था, जिन्होंने ट्यूसडे का कॉल दिया था, उनको भी मैंने बोला था ये बहुत पॉजिटिव कैंपेन होने वाला है, ठीक है? पॉजिटिव कैसे होगा? अब आवाज उठानी है। मैंने आपको क्या बोला कि सब 60 लाख लोग आवाज उठाएंगे तब जाके कैंपेन होगा। निखिल ने भी यही बात पूछ ली कि साहब जिसको दर्द हो रहा है वो तो आवाज ही नहीं उठा रहा है, वो लोग भी उठाएंगे। लेकिन सबसे पहले आवाज उठाने के पहले अपने पास सोल्यूशन होना चाहिए। जब तक ये अवेयरनेस नहीं होगा आप जैसे मेरे जैसे लोगों में कि साहब ये पॉसिबल है, एक कन्विक्शन नहीं होगा कि साहब ये पॉसिबल है, हम दूसरों को जाके क्या बताएंगे। जब मैंने आज आपको एम्पावर किया किसी नॉलेज से, आपको एक कन्विक्शन आया होगा कि साहब ये एक्चुअली पॉसिबल है, तब जाके आप आगे लोगों को बोलोगे। मैं आप सबको एक कैंपेन बता देता हूँ ये क्या है। 3200 रिकॉग्नाइज्ड क्लस्टर्स है बॉम्बे में, स्लम्स में, ठीक है? फिर से 3200 रिकॉग्नाइज्ड क्लस्टर्स है। हर क्लस्टर में मुझे 2-2 स्टूडेंट लीडर्स चाहिए, स्टूडेंट लीडर और यूथ लीडर्स अप टू एज 30 के, हर स्लम क्लस्टर में। क्या होता है, वी आर मूव्ड बाय स्टोरीज। हम लोग को स्टोरीज पसंद होती है, वरना मूवी भी नहीं देखते। आर्ट फिल्में चलती नहीं है इसलिए कि स्टोरी से ज्यादा उसमें कंटेंट होता है, मतलब नॉट द सीरियस स्टोरी या मसाला मूवी, बट वैसे कमर्शियल मूवीज इसलिए चल जाती है, वो लोग कुछ ना कुछ स्टोरी बना ही लेते हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं कि 3200 स्लम क्लस्टर्स में 6400 लीडर्स खड़े करने वाले हैं, जिनको हम बताएंगे कि साहब ये अपना प्लान है। एक दिन आएगा, आज से 1 साल बाद 1.5 साल बाद, एक दिन प्लान करेंगे अपन, जिस दिन मुंबई का स्टोरी अपन शेयर करेंगे।
राइट, मैं आपको बताता हूँ मुंबई के स्लम्स में ऐसी आजी है 85 इयर्स ओल्ड जो आज भी 15 मिनट तक शीर्षासन कर सकती है। अपन में से कितने हैं जो 15 मिनट तक शीर्षासन कर सकते हैं? सर नीचे पैर ऊपर, ठीक है। मैं तो साहब 5 मिनट ज्यादा नहीं कर सकता, वो 15 मिनट तक। ये हमारी धरोहर है। सो वी हैव द टैलेंट इन मुंबई। आप मानोगे नहीं, मुंबई के कई डांस ट्रूप्स इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड जीत के आए। आप जो इंटरनेशनल डांस मूवीज देखते हो ना, 3D डांस मूवीज, वो सारी, वो जो डांसर्स हो उनको बीट करके अपने डांस ट्रूप्स अवार्ड लेके आए। वी हैव द टैलेंट इन मुंबई। मुंबई का यही स्टोरी अपने को शेयर करना है। आज से 1.5 साल बाद ये 6400 जो लीडर्स होंगे अपने अपने स्लम से, जितना भी टैलेंट है मुंबई में, सबके सब एक वीडियो बना के शेयर करेंगे। These people, ये हमारी धरोहर है एंड वी नीड बेटर लाइफस्टाइल। जब मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, जब मेरे पास 6 से 7 हजार वीडियोस एक हैशटैग पे शेयर होते हैं, जब मेरे पास 10 से 50 हजार फोटोज एक हैशटैग पे शेयर होते हैं, कमेंट शेयर होते हैं, सब होते हैं, ये इंटरनेशनल न्यूज बनती है। दिस इज द एक्चुअल कैंपेन। ये इंटरनेशनल न्यूज बनती है। जब इंटरनेशनल न्यूज बनती है तो इंटरनेशनल मीडिया जब देखती है तब सरकार उसमें उनको प्रेशर आता है और सरकार को बात माननी पड़ती है। बिकॉज फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उस चीज की बात करने लगता है कि दीज गाइज आर टेलिंग द ट्रूथ एंड दीज गाइज हैव अ सोल्यूशन एज वेल। जब इतना इंटरनेशनल प्रेशर यूएन का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, सबका आता है तो सरकारों को बात मान्य करनी पड़ती है। So this is the real campaign, Nikhil. Really, thanks for asking. And this is the campaign we are joining. मैंने आज आप लोगों को ये चीज बताई है। आई एम एम्पावरिंग यू गाइस। मेरे 2-3 सेशन के बाद आज जैसे गौतम ने ये सेशन लिया, गौतम ने जो स्टोरी शेयर की, गौतम has already become an expert in this. कुछ दिनों बाद यही सेशंस गौतम लेगा दूसरों के साथ। I really want you guys to become that leader. ये सेशंस आप लोगों के साथ लीजिए, थोड़ा बहुत रिसर्च करके खुद को एम्पावर कीजिए नॉलेज में। यही सेशंस आप लोगों के साथ लीजिए। मैं अकेला, मेरे अकेले का रीच 20 लोग हैं, लेकिन आप 20 लोग जब 20-20 लोगों को सेम चीज बताते हो तो वो रीच 400 हो जाता है। वही जब 400 लोग यही सेम बात और 20 लोगों को बताते हैं तो वो रीच मेरा 8000 का हो जाता है। सो अंडरस्टैंड कितना एक्सपोनेंशियली वो चीज को राइज करते हैं। आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू बिकम दैट लीडर, टू गेन द नॉलेज, become that leader, and be that Zero Slum Mumbai campaigner. Right, so more questions? हेलो। Yeah, Yash, go ahead. हाँ, मुंबई जो है दूसरे शहरों के साथ में जोग्राफिकली कनेक्टेड है। जैसे कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में नवी मुंबई है, ठाणे है, वसई विरार, कल्याण, डोंबिवली है। तो फिर ऐसे कुछ लोग हैं जो स्लम्स में रहते हैं मुंबई के बाहर, जैसे कि ठाणे में या फिर मीरा भाईंदर में, और वहां से उनका काम मुंबई में होता है तो वो ट्रेन से रोज ट्रैवल करके आते हैं। तो उस टाइप के इस सिचुएशन को कैसे कंसिडर किया है इसके प्लान में? क्योंकि ये प्लान मुंबई के बारे में है पर लोग ट्रैवलिंग करते रहते हैं। राइट, तो यश यही तो बात है कि अगर मैंने मालवनी का आपको एग्जांपल दिया, मैंने गोरेगांव का आपको एग्जांपल दिया, तो मैं एज अ मुंबईकर मेरे को चर्चगेट रोड जाने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ट्रेनें बंद हो जाएंगी। जो आज मीरा रोड से रोज चर्चगेट जाता है कॉलेज के लिए, उन लोगों के लिए ट्रेन रहेगी एंड उन लोगों के लिए इतनी भीड़ भी नहीं रहेगी क्योंकि मैं नहीं जाता ट्रेन से। जब हम लोकल लेवल पे ये सब चीजें डेवलप कर देते हैं तो ट्रेनों पे और मेट्रो पे लोड कम हो जाता है। तो जो मेट्रोपॉलिटन रीजन से आते हैं वो लोग भी ट्रेन यूज कर सकते हैं। Right, Yash? I hope that answers the question. Yeah. Brilliant. Thanks a lot. So we still have 5-6 minutes. Anyone more questions? Please feel free to ask, क्योंकि आप जितने क्वेश्चंस पूछोगे वो दूसरों के लिए भी एक कभी फ्यूचर का क्वेश्चन बनता, वो आज ही पता चल जाएगा उनको। हेलो। या गो अहेड। हाँ, अभी जैसे बहुत सारे स्लम्स में दुकानें भी हैं, तो नए प्लान्स में दुकानें का भी प्लान है क्या ग्राउंड फ्लोर्स पे बनाने का? वो तो हर बिल्डिंग में बनती है। Okay. ये प्लानिंग एक बिल्डिंग की नहीं है, ये पूरी टाउन प्लानिंग है, होलिस्टिक प्लानिंग है। वो तो वैसे भी हर बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पे दुकानें बनती है। ओके, सो मुझे बस थोड़ा बहुत ये कहना था कि
अभी जो हमारा लॉकडाउन चालू है, so and after the lockdown once it ends, okay, corona thing is over, we'll have some on ground campaigns. But tab tak, as Aditya sir was saying, what contribution you can have, आपका क्या contribution हो सकता है? तो बहुत simple है. See, as he said कि around a month or a few months ago, I was attending his presentation the way you are doing it now, and today I have been getting my friends and my contacts to attend such presentation. तो आपको भी एग्जैक्टली यही करना है. आपको भी अपने कॉन्टैक्ट्स में बताना है कि ऐसा ऐसा है, जीरो स्लम्स मुंबई बनाना है. इफ यू वांट टू नो द प्लान, इफ यू वांट टू कनेक्ट विद आवर कैंपेन, बस ऐसा प्रेजेंटेशन है, आप यहाँ पे आ जाओ. In fact, even you can organize such presentations, and Aditya sir will be there to give presentations. आप खुद भी presentations दे सकते हो. So this is the plan for the entire lockdown, and I think maybe for the entire year 2020. उसके बाद भी जब तक एक कोरोना रहेगा, जितने ज्यादा लोगों को हो सके उतने ज्यादा लोगों को हमें कनेक्ट and bring them into this, get them to contribute, let them know our plan. ये एक चीज है. और दूसरा, as he said, social, I'll add all of you in the group. आप सबको मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगा, I mean we'll share the social media handles. मुंबई मार्च के है या जीरो स्लम मुंबई के है, सोशल मीडिया हैंडल्स शेयर कर देंगे. एंड देयर विल बी ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक. आप जाके वहां पे फॉलो करिए, लाइक करिए पोस्ट को, और ताकि उसका सोशल मीडिया स्प्रेड बढ़े. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब एक्चुअल कैंपेन चालू होगा, सोशल मीडिया विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप सभी लोग ट्विटर पे ज्वाइन हो जाइए. ट्विटर पे आपको बाकी चीजों के अपडेट्स मिलते हैं, और इनफैक्ट आज डिस्कोर्स देखो या किसी भी चीज का डिस्कोर्स देखो, काफी सारा ट्विटर पे होता है. तो इनफैक्ट आप कई बार न्यूज ना पढ़ो, बट ट्विटर पे एक्टिव रहो तो आपको काफी सारी चीजें मालूम पड़ जाती है अलग अलग पर्सपेक्टिव से. तो आप लोग प्लीज ट्विटर अकाउंट बना लो. एंड वी हैव अ जीरो स्लम मुंबई अकाउंट, वी हैव हमारे अकाउंट्स हैं. इनफैक्ट जो मेन कैंपेन है वो ट्विटर पे होगा. प्लीज मेक अ ट्विटर अकाउंट, यू विल बी एडेड इन द ग्रुप वेयर यू विल गेट ऑल द अपडेट्स. एंड ये तो सेशन आज का हो गया. 2 weeks later we'll have another session. So look up in your friends somebody who wants to join the session. कोई बताओ किसी को सेशन के लिए इनवाइट करो. और हाँ, that is all. हाँ, और एक और बात था कि प्लीज सेव माय को मैसेज किया होगा, क्योंकि क्या है, मैंने एक ब्रॉडकास्ट बनाया जितने भी जीरो स्लम मुंबई से रिलेटेड लोग ज्वाइन हो रहे हैं उनका, दैट आई कैन नो आज के जो मीटिंग के टाइमिंग्स है, अपडेट्स है, लिंक चेंज हुआ, ग्रुप के अलावा पर्सनली भी भेज सकूं. बट पॉइंट ऐसा कि अगर किसी ने मेरा नंबर सेव नहीं किया हो तो वो ब्रॉडकास्ट का मैसेज उन तक पहुंचता नहीं है. सो प्लीज सेव माय कांटेक्ट नंबर. मैं आपको पर्सनली कॉल भी करूंगा उसके लिए, बट एज अ जनरल रिक्वेस्ट. दैट इज Brilliant. Thanks a lot, Gautam, for that update. I really appreciate everyone taking this session. 1.5 hours अपने शायद एक मूवी देख सकते थे अपन नेटफ्लिक्स पे, तो बिंज सीरीज कर लेते. लेकिन आज हमने मुंबई के बारे में बात की है, आपको बहुत कुछ पता चला है. आप फ्यूचर में मेरे पास आओगे साहब, ये भी प्रॉब्लम आ सकता है, ये भी प्रॉब्लम आ सकता है. यही प्रॉब्लम का बैठ के सोल्यूशन ढूंढेंगे, यही सोल्यूशन जो होगा हम सरकार को देंगे. एंड टुगेदर वी कैन मेक अ ब्रेक मुंबई. बिकॉज 2030 तक अगर अपन ने मुंबई जिस दिशा में जा रहा है, बहुत बड़े एक्टिविस्ट से मेरी बात हुई थी, अगर मुंबई को यहाँ से अगर 2030 तक सही तरीके से नहीं डेवलप किया गया तो वो कभी हो भी नहीं पाएगा. We'll be in deep mess, उसके बाद मुंबई बचेगा भी नहीं. So this is the time to act. Coronavirus is just the start of what is going to come, and slums would be that place where it attacks every time. That is making us weak every day. And from time and again मैं ये बोल रहा हूँ कि आज हमने को ऐड करना है. Next 1 years में अगर ये नहीं हुआ तो by 2025-30 we won't be able to take any more decision. With this, I really thank all of you guys. Anyone जिनका introduction बाकी है, we'll quickly finish that in next 5 minutes. So कोई जिसका introduction बाकी है, please unmute yourself and start speaking. Shashank, please introduce. शशांक है, फिर पार्थ है, एंड मुकेश also there. Hi, myself Mukesh Jadhav. Thank you very much for the session. You're welcome. So what do you do, Mukesh? I'm into media. I generally direct projects, media projects. Okay, super. With which company? Motion Media Arts.
Brilliant, Mukesh. So you can join our social media group. अपना जो media group है ना Gautam, इसमें Okay. already if you wish to join, obviously. Yes, So yes. with that you can help it in the media spreading of our campaign. Sure, sure. Brilliant. Thank you for the session. You're welcome, Mukesh. Really appreciate your support. So Thank who's you, thank next? कोई बाकी है? Shashank, you can introduce yourself. Shashank, Harish, Pooja. Yeah. Parth. Yes, Parth here. Good evening, everyone. Yeah, Parth, go ahead. Yeah, I'm from Kutch, Gujarat. I'm studying in Mumbai, in University of Mumbai. I'm recently in Kutch. Also, I am much active in all this kind of activities. Like I am volunteering in Green Mumbai. Also in Beach Please India. I go to random beach cleanup drives, and this thing interests me a lot. So I'll give my best and give my 100 in it. Superb. Also, really appreciate that. I'm working as a trainee with Aditya Birla Capital currently. Brilliant, Parth. So we really appreciate, and you are already an activist. Please Gautam के साथ touch में रहिए and be that leader that Sure. Gautam is being. Youth has to come up and take up the responsibility of Mumbai. Yeah. Also, I would like to share that after inspiring from Sonu Sood, like here in Gandhidham, there was a group of laborers who were stuck from Gandhidham is in Kutch. It's a very small city in Kutch. So there was a group of laborers, 64 laborers were stuck here, and they wanted to go West Bengal, and they weren't aware about the pin code of the city in which they are staying. So I helped them with all the documentations and all, and they reached West Bengal by their own expense. I didn't bear any, but I helped them with all the government documents and all. So I this thing interests me a lot. So I'll make sure I'll be there. Super. Really appreciate that. In fact, this is what जितने भी एक्सपीरियंस लोग हैं ना, वो लोग तो अपने कैंपेन में और चार चांद लगाएंगे भी. जो नए लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है to actually learn about this campaign. In fact, any social campaign ऐसे. So I really appreciate that part. Thanks for that. Hi, Lalita here. Yeah, Lalita, go ahead. No, I hadn't introduced myself. Yeah, no. I'm an ex-banker. I'm a Okay. housewife now, but I'm part of the FFF. Actually, I'm a senior citizen compared to all of you. Okay. Compared to all of us. Okay. It really interests me, and I would like to be a part. Only I'm being a little restricted because of the corona. Okay. Otherwise, I'm part of IALM also, and I'm part of a zero waste group. So these things really interest me, and I'm born and brought up here, so Bombay is dear to me. That's amazing, Lalita. So which group did you tell me you're working with? I'm working for FFF, Fridays for Future. Okay, what does that do? Environment. Okay, that way. So you probably go on a Friday. One who is, and this is also from Fridays for Future. Yash Agarwal spoke. One of the members here, Yash Agarwal. Okay. From Fridays for Future. अरे amazing यार. Then we can have co-branded activities. Fridays of Future को भी आप ला सकते हो. That's how I got this. He sent it on the group. Superb, Yash. Already being a leader. Amazing, Lalita. Thanks. And in fact, very relevant questions, and which means that you're understanding the concept really. And I really appreciate you being over here. Yeah, in fact, FFF will be of great help to us in this campaign. In fact, आप अपने FFF के और भी लोगों को you can get them to join. Get them in our sessions, next sessions में. क्योंकि FFF में तो generally there are all kinds of people from the city who are contributing to the environment. They are somehow connected to FFF. So it would be like. So it's going to be something similar, not exactly similar, but something similar because अपन बहुत मस्ती करने वाले हैं. So ऐसा नहीं बोरिंग सोशल कैंपेन नहीं होने वाले कि हर बार को आके भाषण देके जाएगा. गौतम से पूछो वो रिवर मार्च के प्रोग्राम्स में आया. इनफैक्ट लास्ट ईयर 15 अगस्त को हम लोग साथ में थे बीच क्लीन अप पे. We have a lot of fun together. सब लोग मस्ती में काम करेंगे. साहब देखो खुश रह के काम करना है अपने को. जो भी करना है. दुख घर पे नहीं लेके जाना है.
तो खुश रह के काम करेंगे, बहुत हैप्पी कैंपेन बनाएंगे, मुंबई को वापस ग्लोबल लीडर बनाएंगे एज अ सिटी. दैट इज व्हाट द कैंपेन इज. एनीवन लेफ्ट फॉर द इंट्रोडक्शन? ठीक है. हाँ मैं हूँ सर. हेलो. या गो अहेड. नर्मदे यार आप सभी को. आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है. हाँ मैं हरीश कुमार धुर्वे. बेसिकली मैं अमरकंटक से हूँ, एमपी से, जहाँ से नर्मदा रिवर निकली है अपनी. ओके. सामाजिक कार्य करता हूँ मैं. तो ये लिंक मेरे को व्हाट्सएप में मिला था, मैंने देखा तो मैंने सोचा रजिस्टर कर लेता हूँ. उसके बाद क्या नॉलेज इसमें मिलता है वो उसके लिए मैंने रजिस्ट्रेशन किया था. ओके. बट सेशन बहुत अच्छा था. थैंक यू. और इसके बारे में मैं पढ़ा भी नहीं हूँ. अब अभी सेशन मैंने देख लिया, इसके बारे में कुछ सर्च करूंगा, आप लोगों से जुड़ा रहूंगा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. और कोशिश करूँ. हरीश आप म्यूट हो चुके शायद. हेलो. या गो अहेड हरीश. हेलो. हाँ हरीश बोलिए आगे. हाँ तो मैं ये कह रहा था सर, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग के साथ जुड़ के कुछ कर सकूं. डेफिनेटली. अभी मैं भोपाल में रहता हूँ, भोपाल में, कैपिटल ऑफ एमपी. और बाकी गांव अपना जो रूरल एरिया है, विलेज, यहाँ अपन सोशल वर्क करते हैं डेली, मतलब जुड़े ही हैं जितने भी अपने यहाँ. बहुत ऐसे ऐसे विलेज हैं जो इतने पुअर हैं कि अब क्या बताएं. तो वही मैंने देखा कि ये हरीश आया है लिंक. आपके साथ है ना. आई रियली अप्रिशिएट योर इंट्रोडक्शन. आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा है. हरीश आपके जो एमपी में है ना, हमारा और एक बहुत बड़ा ग्रुप काम कर रहा है. 1 करोड़ ट्रीज वाला. हमारा 1 करोड़ ट्री प्लांट करने का मिशन अगले 2 साल में. उसके लिए मैं आपको पर्सनली भी अपन एक बार बात करेंगे. गौतम डू शेयर हरीश को मेरा नंबर देना. बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है. एक पर्सनली भी बात करेंगे. आपके जो आपने रूरल एरिया में बताया ना, फार्मर्स के हम लोग इनकम रेवोल्यूशनाइज कर देंगे. जी जी. इसका काम नहीं करते, जीरो स्लम्स का. मैं बहुत सारे कैंपेन से जुड़ा हुआ हूँ उस तरीके से. एक जरा एमपी के गांव को भी अपन है ना सुधारने की कोशिश करेंगे. बिल्कुल. बस उसी में लगे सर. अपने आपको हम मदद भी कर देंगे उस चीज में. तो बहुत अच्छा लगा आप इस सेशन में आए. कोई थैंक यू हरीश. तो और कोई बाकी है जिसका इंट्रोडक्शन बाकी है? तो आई थिंक मोस्टली सबका इंट्रोडक्शन हो गया. एक दो है शायद वो अनलॉक नहीं हो पा रहे, अनम्यूट नहीं हो पा रहे. आई रियली अप्रिशिएट यू गाइस कमिंग ओवर हियर. आगे और भी सेशंस में मैं आप लोगों को मिलता रहूंगा. गौतम से प्लीज टच में रहिए, मेरे से प्लीज टच में रहिए. एंड लेट्स टुगेदर मेक स्लम फ्री एंड मेक इंडिया ग्रेट अगेन. थैंक्स लॉट गाइस. Okay. Thank you sir. Thank you so much. Thank you.